Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru Let's Compete. Today, I will discuss digital literacy. It is part 3. In this part, I will discuss artificial intelligence in school education. It is the most important part of digital literacy. So, it is very useful for UPSC principal and vice principal exams. It is third part. In this part, I will discuss many things related to the artificial intelligence, and also I will discuss 20 MCQs. I'm telling actually I am not computer expert one. Just I am having limited knowledge related to the computer. So I have prepared actually this only for the examination point of view. So my friends, if you detect any lacuna or if you detect any shortcomings, please forgive me because I am not expert one related to the artificial intelligence. I am having no enough knowledge, but just I have prepared according to the demand of my subscribers and according to your demand. Just I have prepared this lesson and it is useful for school education. Okay, my friends. So please subscribe my channel, Asit Government Rule Guru Let's Compete. Please subscribe my channel, like my channel and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Also, you can share my channel to your friends and colleagues also, they can get benefit. Okay, if you see my video, please do not forget to click on the subscribe button. Please subscribe my channel. So you join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. Okay, join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any doubt is there, you contact with me and clear your doubt. Now I am going to discuss about first one. I will discuss related to the artificial intelligence. What type of benefits nowadays the students are getting through AI apps. Okay, so and then I will discuss 20 MCQs. You see the definition, it is clearly given. uh, Artificial intelligence means creating machines that can think and act like humans. These machines are designed to learn, solve problems, and make decisions just like a human brain does. So it is a very common definition है क्योंकि जो AI आप है, जो AI है एक मशीन जैसा है. सो जो हम बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन एक्चुअली जो ह्यूमन थिंकिंग है, जो ह्यूमन बीइंग का जो सेल्फ अवेयरनेस है, जो डिजायर है, जो इमोशन है, जो गोल है, ये नहीं मिलेगा. इसमें क्या है मैं थोड़ा बता देता हूं. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर वेबसाइट है और वेबसाइट में सब कुछ इंफॉर्मेशन से, सपोज कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका एकेडमिक करिकुलम है, उसका पेडागोजिकल प्लान है, उसका इंस्टीट्यूशनल प्लान है, उसका एकेडमिक कैलेंडर है, उसका पूरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर द ईयर है, और जो टीचिंग स्टाफ्स का डिटेल्स है, उनका क्वालिफिकेशन है और बुक ऑफ ज्वाइन किए थे, नॉन टीचिंग स्टाफ का डिटेल्स है, करिकुलर एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज है, पास्ट रिकॉर्ड्स है, पास्ट रिजल्ट्स है, सब कुछ है. तो इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट में है मीन्स वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, तो बहुत कुछ आजकल एक्चुअली इट मीन्स एप्स एक्चुअली सम एआई डिजाइन है, तो उनके पास है वो इंफॉर्मेशन. सो जो इंफॉर्मेशन है तो मैसिव डाटा है. ठीक है, जो आप बोल रहे हो कि एआई आप जैसे जेमिनाई को कुछ पूछोगे कि चैट जीपीटी को, वो आंसर दे देता है. इट मीन्स उनके पास मैसिव डाटा है, एल्गोरिदम है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है और कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स एंड इंटरफेस है. उसको लेके एक्चुअली एआई आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो जवाब मिल जाता है. जैसा एक इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट के बारे में बताया, तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन है, और वो इंस्टीट्यूशन के बारे में आप पूछोगे तो चैट जीपीटी बता सकता है, जेमिनाई आराम से बता सकता है, क्योंकि पूरा डाटा वो ले चुका है, एक्सट्रैक्ट कर ले चुका है एक्चुअली इंस्टीट्यूशन का. तो ये एक एक्चुअली मशीन है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, मगर एक्चुअली जो हमारा एक्सपर्ट्स है, डाटा क्रिएट कौन किया है? डाटा क्रिएट एक्चुअली ह्यूमन बीइंग किया है. ठीक है, तो वो मैसिव डाटा कहां से मिला है एआई को, एआई आपको? तो वो हमसे ही मिला है. ठीक है, तो आजकल क्या है, दो प्रकार का एआई है, एक नैरो है, एक जनरल है. तो जनरल अभी थ्योरेटिकल स्टेज में है, तो उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा.
तो अभी जो मैसिव डाटा है, जैसे मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं किस तरीके का वीडियो बना रहा हूं, व्हाट टाइप ऑफ वीडियोज जस्ट आई एम मेकिंग, और हाउ मेनी वीडियोज ऑलरेडी हैव मेड, एंड दीज वीडियोज आर यूजफुल फॉर विच टाइप ऑफ एग्जाम्स. सो मैं डिस्कस कर रहा हूं और बता भी रहा हूं कि ये वीडियो एक्चुअली इस एग्जाम के लिए अच्छा है, और मैं उसमें जो इंटरफेस में भी इंफॉर्मेशन देता हूं कि एक्चुअली दिस वीडियो इट इज यूजफुल फॉर दिस एग्जाम्स. तो आप चार्ट जीपीटी को पूछोगे कि जेमिनाई को पूछोगे, वो मेरे जो यूट्यूब वीडियो के ऊपर इंफॉर्मेशन दे सकता है कि ये जो एक्चुअली वीडियो बना रहा है, जो एक्चुअली यूट्यूब चैनल का नेम है, और वो व्हाट टाइप ऑफ वीडियोज ही इज मेकिंग, सपोज whether actually majority subscribers actually prefer these videos or not, or these videos are useful for which type of exams. तो वो है, तो इट मीन्स जो हमारा डाटा, जो एक्सपर्ट्स है, जो एडुकेटर्स है, जो साइंटिस्ट है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है, उनका मैसिव डाटा है. तो मैसिव डाटा को थ्रू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, थ्रू स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स, थ्रू एल्गोरिथम, ये डाटा को एक्चुअली पहुंच जाता है. इट मीन्स एआई के पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास. तो आप जब उसको यूज करते हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है. तो ये एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर रहा है, मगर ये नहीं है कि जैसे ह्यूमन बीइंग, उसका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, कि उसका जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, उसका जो इमोशनल एबिलिटी है, उसका जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसका जो डिजायर है, उसका जो इमोशंस है, वो नहीं है. मगर अभी हाँ, एक आ रहा है जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ रहा है, वो थ्योरेटिकल स्टेज में अभी उसके ऊपर प्रोसेसिंग चल रहा है. तो वो एक्चुअली जो ह्यूमन ब्रेन के साथ एक्चुअली हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं, और वो ह्यूमन ब्रेन से भी और ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, मगर अभी वो थ्योरेटिकल स्टेज में है. चलो आगे में चलते हैं. नेक्स्ट वन, एक है सिमुलेशन वर्सेस रियल थिंकिंग. The core distinction, AI does not actually think, feel or possess consciousness the way a human brain does. मैं अभी बताया था आपको कि AI एक्चुअली उसके पास एक्चुअली ह्यूमन बीइंग की तरह एक थिंकिंग की जो फीलिंग पावर है, कि जो कॉन्सियसनेस है, वो एक्चुअली उसके पास नहीं है. जो हमारा ब्रेन में है, जब हम हमारा जो डाटा है, वो हमारा डाटा को लेके इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो हमारा पूरा मैसिव डाटा को लेता है. मैं अभी एग्जांपल दिया था, जो हमारा जो भी डाटा वेबसाइट में है, कि हमारा बहुत कुछ थेसिस है, हमारा बहुत कुछ डाटा जो एक्चुअली रिटन मटेरियल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है, वो डाटा को लेता है. जो हमारा डाटा जो एक्चुअली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, जो हमारा डाटा ऑनलाइन में है, वो डाटा को लेता है, और वो डाटा को आराम से आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसको इंटरप्रेट करके बता रहा है. ये आप यूट्यूब में देखिए, आप सो मेनी एक्चुअली एडुकेटर्स, सो मेनी एक्चुअली different fields actually, philosophers, writers, scientists, so many actually professors, their it means datas available. तो वो डाटा पहुंच जाता है एआई के पास, तो वो उसको आराम से, जब जो भी क्वेश्चन पूछते हो, वो आराम से उसको इंटरप्रेट कर सकता है. तो एआई डज नॉट एक्चुअली थिंक, फील और possess consciousness the way human brain does. How it actually works? Instead of understanding concepts organically, modern AI relies on mathematical algorithm, statistical pattern, massive amounts of data. तो उसके पास क्या है ना, AI क्या करता है, उसके पास मैसिव अमाउंट्स ऑफ डाटा, जो भी डाटा ऑनलाइन में है, वेबसाइट्स में है, तो वो डाटा AI के पास पहुंच गया. मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स, तो ये सबको मिला के, ठीक है, टू सिमुलेट ह्यूमन, टू सिमुलेट, वो इमिटेट करता है जस्ट ह्यूमन रीजनिंग, लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ये जो एआई आप है, ये जस्ट एक सिमुलेशन है, वो ह्यूमन बीइंग को इमिटेट कर रहा है, क्योंकि हमारा डाटा उसके पास मैसिव डाटा है, और वो क्या करता है, उसके पास स्टैटिस्टिकल पैटर्न, एल्गोरिथम और मैसिव अमाउंट्स ऑफ डाटा, यही जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, वही ह्यूमन ब्रेन काम करता है. जो ह्यूमन ब्रेन ही वही मशीन को क्रिएट किया है. तो पूरा डाटा जितना ऑनलाइन में डाटा है, ठीक है, जितना ऑनलाइन में डाटा है, वो मैसिव डाटा को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ जोड़कर, उसमें मैथमेटिकल एल्गोरिथम को यूज करके, उसमें जो स्टैटिस्टिकल पैटर्न को यूज करके, ठीक है, और उस डाटा को आराम से आप, कोई भी एआई आप उसको इंटरप्रेट कर सकता है. ठीक है, आप देखिए स्पेशलाइज कुछ एग्जांपल आपको देता हूं.
जो नैरो आप बोले जैसे जो नैरो एआई है, सपोज एक एआई आप है, वो स्पेशली मैथमेटिक्स के ऊपर है, स्पेशलाइज्ड इन मैथमेटिक्स, ओनली वो एक्सट्रैक्ट किया है, इट मीन्स मैथमेटिकल पार्ट्स को वो एक्सट्रैक्ट किया है, तो उसको आप लैंग्वेज के ऊपर पूछोगे, क्या वो आंसर दे सकता है? क्योंकि वो स्पेशलाइज, वो जो आप है वो ओनली मैथमेटिक्स के ऊपर है। स्पेशली वैसा ही आप है जो लैंग्वेज के ऊपर है, आप उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कंप्यूटेशन के बारे में पूछोगे, क्या वो बता सकता है? मगर हाँ, अभी जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ रहा है वो डिफरेंट डोमेन्स में आपको आंसर दे सकता है। तो उसका जो वो थियोरेटिकल स्टेज में है, अभी बोल रहे हैं कि उसका जो एक्चुअली पैटर्न होगा, तो उसका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो इंडिपेंडेंट डिसीजन है, वो एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन के साथ इक्विवेलेंट हो सकता है और उससे ज्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, मगर नैरो एआई क्या है, जो भी डाटा है वो डाटा को लिया है और वो डाटा को मैथमेटिकल एल्गोरिथम और स्टैटिस्टिकल पैटर्न और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से उसके पास पूरा डाटा है, उसको जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको इंटरप्रेट करके बता रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, टाइप्स में बता रहा था अभी, नैरो और जनरल। एआई जनरली डिवाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। एक है नैरो एआई, जिसको वीक एआई, ये अभी जो चल रहा है करेंटली, ठीक है, डिजाइन टू एक्सेल एट ए स्पेसिफिक टास्क, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन। आपका देखा होगा मोबाइल में आपका लॉक जो है फेशियल रिकॉग्निशन, आपका टैबलेट में कि आपका जो डेस्कटॉप में फेशियल रिकॉग्निशन से ओपन हो रहा है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, जो सपोज बेसिकली मैं एग्जांपल देता हूं, जो हियरिंग इंपेयर्ड है उनको स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, जो विजुअल इंपेयर्ड है उनको टेक्स्ट से स्पीच को कन्वर्ट करना। ठीक है, प्लेइंग चेस ऑल्सो सम ट्रिक्स एक्चुअली इट मीन्स कैन गिव, ओके, हाउ टू प्ले द चेस। और रूट ऑप्टिमाइजेशन, आप देखिए गूगल मैप को पूछिए, वो आपको लोकेट करता रहेगा। ठीक है, और क्या ट्रैफिक का फैसिलिटी है वो बताता रहेगा। ठीक है, तो ये सब करंट स्टेटस में ऑल एग्जिस्टिंग एआई टुडे, जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम है, जो रिकमेंडेशन इंजिन से, इट इज नैरो एआई। आप देखा होगा एक जो आप देखिए उसमें जो करंट स्टेटस के ऊपर वो पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या है, जो भी डाटा, जो जितना डाटा ऑनलाइन में है उनके पास है, तो उनका एक बाउंड्री है, बियॉन्ड ऑफ बाउंड्री एक्चुअली वो बता नहीं सकते। ठीक है, तो आप बोलेंगे जो नैरो एआई है उनके पास एक्चुअली हैज नो सेल्फ अवेयरनेस की, हैज नो डिजायर्स, इमोशंस और गोल्स लाइक ह्यूमन बीइंग। जो डाटा हम, इट मींस वी हैव मेड सम डाटास, ऑल दीज डाटास अवेलेबल इन वेबसाइट्स ऑनलाइन, तो वो डाटा उनके पास है और एक बाउंड्री, स्पेसिफिक बाउंड्री है। वो स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर उनके पास बहुत कुछ डाटा है और उसको आराम से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो वही करंट स्टेटस है। तो ऑल एग्जिस्टिंग एआई टुडे, ओके, इंक्लूडिंग चैट जीपीटी, जेमिनाई, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम्स एंड रिकमेंडेशन इज नैरो, ये सब नैरो एआई है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम थोड़ा आगे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जनरल एआई, इसको बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एआई और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये थियोरेटिकल सिस्टम विथ फ्लेक्सिबल जनरलाइज्ड इंटेलिजेंस दैट कैन अंडरस्टैंड, लर्न एंड अप्लाई नॉलेज अक्रॉस एनी डोमेन, फुली मैचिंग और एक्सीडिंग ए ह्यूमन माइंड। देखिए ये एक थियोरेटिकल सिस्टम है, अभी ये प्रोसेसिंग स्टेज में है। इसका एग्जांपल बताऊं, ये स्ट्रॉन्ग एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बीइंग इट कैन अंडरस्टैंड, लर्न एंड अप्लाई नॉलेज अक्रॉस एनी डोमेन, और उसका जो एबिलिटी है फुली मैचिंग और एक्सीडिंग ए ह्यूमन माइंड। ठीक है, उसमें देखिए इमेजिन वन एआई दैट कैन थिंक एंड लर्न लाइक ए हाईली कैपेबल ह्यूमन। टुडे इट रीचेस मैथमेटिक्स, सपोज वो आज आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, टुमारो इट लर्न्स टू ड्राइव ए कार, वो लर्न करेगा कैसे कार को ड्राइव किया जाएगा। लेटर इट रिसर्चेस ए न्यू साइंटिफिक प्रॉब्लम, तो अडॉप्टिंग इट्स नॉलेज टू इट्स सिचुएशन। देखिए ये जो जनरल एआई आ रहा है उसका डिफरेंट डोमेन के ऊपर नॉलेज है, जैसे ह्यूमन बीइंग की तरह वो अंडरस्टैंड कर सकता है, लर्न कर सकता है और नॉलेज को अप्लाई कर सकता है डिफरेंट डोमेन में।
और बोलते हैं कि उसका जो ये जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का जो ब्रेन है, इट इज इक्विवेलेंट टू द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग और एक्सीडिंग ए ह्यूमन माइंड। ठीक है, जैसे वो बताया डिफरेंट डोमेन में। सपोज टुडे एक्चुअली जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, टुमारो वो इट मींस इट लर्न्स टू ड्राइविंग ए कार, आपको कैसे कार ड्राइव करना है वो आपको ट्रिक्स बताएगा। कल आपको बता सकता है कि साइंटिफिक प्रॉब्लम के ऊपर कुछ रिसर्च एक्टिविटीज के ऊपर बताएगा। तो डिफरेंट डोमेन्स में, मगर अभी क्या है, कुछ एआई जो आप है स्पेसिफिक है। जैसे एक एआई आप है ओनली साइंस के ऊपर है, तो ओनली साइंटिफिक टर्म्स की साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर पूछोगे वो आंसर बताएगा। उसको आप लैंग्वेज के ऊपर पूछोगे, क्या वो आंसर दे पाएगा? यदि भी आंसर देगा वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो इस तरीके से, मगर ये जो है ये एक थियोरेटिकल सिस्टम है, यह भी डेवलपमेंट फेज में है। और इसको जो जनरल एआई बोलते हैं, उसका जो ब्रेन होगा वो ह्यूमन माइंड की तरह होगा और उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और वो डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर इट मींस कोई भी क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर सकता है, और ह्यूमन बीइंग की तरह वो कोई भी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है, लर्न कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन यहां पर देख लीजिए। जनरल एआई इज करेंटली थियोरिटिकल एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड एट। वो अभी थियोरिटिकल फेज में है, एक्चुअली अभी वो एग्जिस्ट नहीं है रियल वर्ल्ड में। तो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। द यूनिवर्सल प्रोफेशनल असिस्टेंट के एग्जाम्पल, रन ए फुल क्लिनिकल ट्रायल फॉर ए न्यू मेडिसिन। मैंने देखिए इसका जो यूनिवर्सल प्रोफेशनल असिस्टेंट है वो फुल क्लिनिकल ट्रायल फॉर ए न्यू मेडिसिन के लिए फुल क्लिनिकल ट्रायल, ऑटोनोमसली डिजाइन एन आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट फॉर ए ब्रिज। आप एक ब्रिज सपोज कंस्ट्रक्शन होगा, उसका जो आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट, ओके, इस तरीके का। ये सब जो स्ट्रॉन्ग एआई है, जो जनरल एआई है, इनका काम है। नेगोशिएट इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटीज, वो नेगोशिएट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटीज के ऊपर। टीच ए चाइल्ड टू प्ले द वायोलिन यूजिंग इमोशनल एम्पैथी एंड अडैप्टिव पेडागोजी। अब देखिए ये सब, तो ये अभी क्या है, रियल एग्जिस्ट नहीं है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग चल रहा है। और मैं बता चुका हूं कि जनरल एआई जो है अभी एक माने वो क्लिनिकल ट्रायल करेगा मेडिसिन के ऊपर, कि ऑटोनोमस डिजाइन करेगा एक ब्रिज का, एक आर्किटेक्चरल डिजाइन का ब्लूप्रिंट, और वो वही नेगोशिएट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटीज। आप बताइए, तो वो चाइल्ड को वायोलिन के ऊपर टीच करेगा, जो इमोशनल एम्पैथी और अडैप्टिव पेडागोजी। तो ये सब चीज जो है एग्जिस्टिंग नहीं है, मगर अभी प्रोसेसिंग चल रहा है। और ये जो जनरल एआई है, जो उसका जो ब्रेन होगा, मैं बता चुका हूं कि ह्यूमन माइंड और उससे ज्यादा अच्छा हो सकता है, और डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर वो आपको क्लैरिफाई करेगा। ठीक है, और एक देखिए इसमें एक ऑटोनोमस यूनिवर्सल रोबोट के ऊपर बता रहा हूं। ए ह्यूमनॉइड रोबोट दैट अराइव्स इन एन अनफैमिलियर हाउस एंड कैन फिगर आउट हाउ टू क्लीन द किचन। ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है वो एक होम को जाएगा और वो फिगर आउट करेगा कि आप कैसे आपका किचन को क्लीन करेंगे, और जो पाइप में लीकेज है उसको कैसे फिक्स किया जाएगा, और आपका रेफ्रिजरेटर में जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको वो कलेक्ट करके कोई भी करी बना सकता है, कि फूड प्रिपेयर कर सकता है। ओके, और वो क्राइंग चाइल्ड को कंफर्ट दे सकता है। तो प्योरली थ्रू ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेंस एंड जनरल रीजनिंग, पूरा ह्यूमन बीइंग की तरह वो काम करेगा। अब देखिए वो एक्चुअली कैसे किचन को क्लीन करना है, यदि पाइप में लीक है वो कैसे फिक्स करेगा, एक्वागार्ड में कुछ प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम को फिक्स करना, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना, आपका फ्रीज में जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको लेके फूड प्रिपेयर करना। चाइल्ड, सपोज चाइल्ड इज क्राइंग, तो उसको ऑब्जर्व करेगा और कॉमन सेंस जनरल रीजनिंग से उसको कैसे कंफर्ट मिलेगा वो भी करेगा। तो पूरा ह्यूमन की तरह वो काम करेगा। तो ये है स्ट्रॉन्ग एआई। ठीक है, ये अभी थियोरेटिकल फेज में है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एआई है। मगर जो नैरो वाला है, नैरो वाला के ऊपर अभी बहुत कुछ मैं बताऊंगा। नैरो वाला क्या है, जो डाटा उनके पास है और मैसिव डाटा है। अभी देखिए, अभी लगभग सभी डाटा वेबसाइट में है, सभी डाटा ऑनलाइन में है। आप देखिए जो एडुकेटर्स है, जो फिलोसोफर्स है, जो साइंटिस्ट है, जो एकेडमिशियन है, बेसिकली जो प्रोफेसर है, उनका डाटा ऑनलाइन में है। सो मेनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर देयर। तो वो डाटा को पूरा ले लिया एआई ने, और उसको कंप्यूटर प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है,
और जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स है उसको यूज कर रहा है, और आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसको इंटरप्रेट करके वो बता सकता है। ठीक है, मगर इसका एक लिमिटेड बाउंड्री है, उसका बियॉन्ड ऑफ बाउंड्री वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो मैं बताया था अभी जो चल रहा है वो सब नैरो एआई है। नैरो एआई में मैं बता चुका हूं, जो चैट जीपीटी है कि जेमिना है, ये सब नैरो एआई है। ठीक है, इट ओनली फंक्शंस व्हेन प्रॉम्प्टेड विथ इनपुट। जब उनको इनपुट जो भी डाटा उनको मिला उसको थोड़ा वो अच्छे से इंटरप्रेट कर देते हैं। स्टैटिस्टिकल पैटर्न मैचिंग विद इन प्री डिफाइंड कंप्यूटेशनल बाउंड्रीज। तो स्टैटिस्टिकल पैटर्न, तो वो स्टैटिस्टिक में बताया था एल्गोरिथम है, स्टैटिस्टिकल पैटर्न है, उसको लेके वो एक प्री डिफाइंड कंप्यूटेशनल बाउंड्रीज में कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो उसको इंटरप्रेट करके बता रहा है। मगर जो स्ट्रॉन्ग एआई आ रहा है, जो अभी जनरल एआई आ रहा है, अभी जो जनरल एआई है, बोल रहे हैं कि इसका जो ब्रेन होगा वो ह्यूमन ब्रेन के साथ समान होगा और एक्सीड देन द ह्यूमन ब्रेन। तो उसमें स्ट्रॉन्ग एआई में क्या है, एक उसको बोलते हैं कि पॉजेस ट्रू एजेंसी, द एबिलिटी टू सेट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। वो खुद का ओन ऑब्जेक्टिव क्रिएट करेगा, रिफ्लेक्ट एंड मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। उसका जो डिसीजंस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और उसका डिसीजन ऑटोनोमस होगा, और कंटिन्यूअसली लर्निंग अक्रॉस न्यू डोमेन्स, डिफरेंट डोमेन, न्यू डोमेन्स में वो कंटिन्यूअसली लर्न करेगा विदाउट ह्यूमन रिट्रेनिंग। मगर अभी क्या है, ये जो नैरो है, नैरो एआई, कंटिन्यूअसली ह्यूमन रिट्रेनिंग। जो हम न्यू न्यू डाटा डाल रहे हैं उसको चैट जीपीटी जेमिनाई लेके उसी को इंटरप्रेट करके आंसर बता रहे हैं। तो एक उसका एक जो नैरो एआई का एक बाउंड्रीज है। मगर ये जो जनरल एआई अभी आ रहा है तो उसका सो मेनी डोमेन्स के ऊपर वो लर्न कर रहा है, और उसके उसके पास जो ह्यूमन बीइंग के पास जो सेल्फ अवेयरनेस है, जो डिजायर्स है, जो इमोशंस है, उसका जो गोल्स है, ये जनरल एआई के पास होगा। ठीक है, और वो डिसीजंस जो लेगा इंडिपेंडेंटली लेगा, और उसका जो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर कट रहेगा, और उसका डिसीजन जो होगा ऑटोनोमस होगा। ठीक है, तो अभी वो थियोरिटिकल फेज में है, रियली एग्जिस्ट नहीं किया है। अभी कुछ में एग्जांपल दिया था। तो हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल्स। तो एआई इज बिकमिंग मोर कॉमन इन एजुकेशन। इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स रीच देयर लर्निंग गोल्स बाय प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। Teachers also benefit from AI tools which assist in creating lessons and improving teaching methods. While AI offers exciting possibilities, there are also challenges to consider when bringing it into schools. देखिए, स्कूल में एआई के ऊपर आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप एक गूगल क्लासरूम, आप उसको देखिए, आप एक गूगल क्लासरूम, इसमें क्या है, स्टूडेंट्स लॉग इन करेंगे, उनका मेल आईडी ले जाओ, उनका मेल आईडी को कनेक्ट करो, तो मेल आईडी कनेक्ट हो गया और वो स्टूडेंट्स लॉग इन करेंगे। जो भी आप आज टीचिंग किया उसका मटेरियल उसमें अपलोड आप करेंगे, तो जो स्टूडेंट्स एक्चुअली एब्सेंट है उसको भी मिल जाएगा। और ऐसे गूगल अटेंडेंस आप ले सकते हो, और उनका जो आप कोई भी वर्कशीट असेसमेंट, कोई क्विज आप कर रहे हो तो उसका पूरा इट मींस फीडबैक, जैसे आप गूगल फॉर्म में आप टेस्ट कर रहे हो तो उसमें पूरा डाटा जा रहा है, इमीडिएटली आपको पूरा चेक करना नहीं है। उसमें आप क्वेश्चंस फ्रेम कर दो और ऑब्जेक्टिव आंसर्स दे दो, वो चेक करेगा और उसको पाई चार्ट में डिटेल्स बताएगा कि कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स एक्चुअली सिक्योर मोर देन 90 के मोर देन 80, पूरा डिटेल्स फीडबैक देगा, और किस किस क्वेश्चन में एक्चुअली स्टूडेंट्स रॉन्ग किया तो डिटेल्स। तो ऐसे बहुत कुछ अभी आप आ रहा है। तो स्पेसिफिक सपोज एआई, स्पेसिफिक एआई आप है, सपोज वो मैथ लेसन्स, आप मैथ लेसन्स एक स्टूडेंट लर्न करेगा। ठीक है, मैथ लेसन लर्न किया, वो क्वेश्चंस पूछेगा और उसी आप में वो टेस्ट कंडक्ट होगा। टेस्ट कंडक्ट होने के बाद तो इमीडिएटली उसको आंसर, एक्चुअली कौन सा क्वेश्चन वो रॉन्ग किया, तो वो एआई आप डिटेक्ट करेगा कि किस एरिया में, सपोज अलजेब्रा पर्सन में वीक है, कि ज्योमेट्री पर्सन में वीक है, कि एनी अदर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स में वीक है, और वो वीकनेस एक्चुअली स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिटेक्ट करेगा और पूरा जो चाइल्ड को एनालाइज करेगा, इवैल्यूएट करेगा, और उस तरीके से वो फिर गाइड करेगा कि इस एरिया में वीकनेस है और क्या क्या रिमेडियल मेजर्स, वो कुछ और लाइव एग्जांपल्स, सिंपल एग्जांपल्स देगा और आप लर्न कर सकते हो। उस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा, तो स्लोली फ्लेक्सिबल से फिर वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरीके से वो चाइल्ड को ग्रूम करेगा।
ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्कूल में अभी एक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आप देखिए, मैं बताऊंगा वर्चुअल जो रियलिटी है, जिसको वीआर वर्चुअल रियलिटी है कि ऑगमेंटेड रियलिटी है। इसमें आप वर्चुअल सपोज एक सराउंडिंग क्रिएट किया जा रहा है, और ऑगमेंटेड रियलिटी में आप जो ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास है उसमें आप कोई बुक का पिक्चर को देख सकते हो और उसके ऊपर पूरा रियल आप नॉलेज गेन कर सकते हो। उसके ऊपर भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। और टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, किस तरीके का टीचिंग मेथड्स होगा, कैसे वो लेसन प्लान्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो उनको एआई आप अभी गाइड कर रहा है, ठीक है। और मैसिव एक्चुअली ट्रेनिंग फैसिलिटीज आर देयर फॉर द टीचर्स, और मेनी न्यू थिंग्स दे आर गेटिंग, ठीक है। तो वाइल एआई ऑफर्स एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज, देयर आर आल्सो सम चैलेंजेस भी है, क्योंकि आप रिमोट एरिया में जाइए, रिमोट एरिया में एक्चुअली इंटरनेट फैसिलिटी प्रॉपरली नहीं है, ओके। और वहां पर आपको टैबलेट चाहिए कि आपको मोबाइल चाहिए कि डेस्कटॉप चाहिए, ये सब अवेलेबल नहीं है। तो ये सब तो वहां पर एक्चुअली जो डिजिटल लर्निंग डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज को आगे में और थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एआई टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन में तीन चीज, एक चार्टबोर्ड है, वर्चुअल रियलिटी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर चैटबॉट्स, वर्चुअल रियलिटी और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट देखिए, चैटबॉट्स के ऊपर मैं बता रहा हूं थोड़ा। आपका स्कूल वेबसाइट में आप कोई कंप्यूटर जो कंसल्टेंसी है, उनके साथ एक्चुअली आप जो चैटबॉट आप नहीं बना सकते। आप आईआरसीटीसी में देखिए, ऊपर में एक चैटबॉट है, आप उसको क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर देगा। वैसा ही आप कोई भी अभी वेबसाइट के ऊपर जाइए, ठीक है, उसके ऊपर उसका चैटबॉट है, तो चैटबॉट को क्वेश्चन पूछने से वो इसके ऊपर पूरा डाटा आपको मिलेगा। वैसा ही स्कूल क्या करेगा, एक चैटबॉट क्रिएट करेगा, मगर डायरेक्टली वो क्रिएट नहीं कर सकता, एक कंप्यूटर कंसल्टेंसी का हेल्प लेके चैटबॉट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वो वेबसाइट के ऊपर रहेगा। अच्छा, उसमें पूरा इंफॉर्मेशन उसको दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, क्या एडमिशन प्रोसीजर है, फी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फी पेमेंट करना है, उसका एकेडमिक करिकुलम क्या है, एग्जामिनेशन कब कब कंडक्ट होगा, एकेडमिक कैलेंडर, इंस्टीट्यूशनल प्लान, पेडागोजिकल प्लान, को करिकुलर एक्टिविटीज, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, असेसमेंट, सपोज डिफरेंट और टीचिंग फैकल्टीज, सब पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा। तो आप वेबसाइट में, वो इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट में जाइए, चैटबॉट को क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि पूरा वेबसाइट का इंफॉर्मेशन उसके पास है। एक कंप्यूटर कंसल्टेंसी का हेल्प लिया गया और उसको चैटबॉट को बनाया गया। इसको हम नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन उसको दिया गया, ठीक है। वो कंप्यूटर कंसल्टेंसी एल्गोरिथम और कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स और मैसिव डाटा, पूरा इंस्टीट्यूशन का पूरा डाटा ले लिया, और चैटबॉट को आप जब भी पूछोगे वो आंसर देगा, क्योंकि उसके पास पूरा मैसिव डाटा है, पूरा इंस्टीट्यूशन का डाटा है, ठीक है। आप पूछोगे कि क्या 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 डेडलाइन है फी पेमेंट का, वो बता देगा, क्योंकि उसके पास डाटा है। आप बताओगे कि क्या एकेडमिक कैलेंडर है, वो बताएगा, क्या एग्जामिनेशन कब कब होगा, वो बताएगा। तो आप देखिए, कोई भी अभी वेबसाइट में जाइए, चैटबॉट है, तो वेबसाइट का पूरा डाटा उसके पास है। आप क्लिक करके बताइए, आईआरसीटीसी में देखिए, आप जब ये चैटबॉट है आप उसको पूछिए, वो डिटेल्स बताएगा आपको, ठीक है, इंफॉर्मेशन देगा, और एक्सपेक्टेड फ्यूचर में क्या क्या इट मींस आपको फैसिलिटीज मिलेगा, कि आपका सपोज चैटबॉट को पूछिए कि ये ट्रेन नंबर है, कि मेरा इस बॉगी में सपोज सेकंड एसी की थर्ड एसी है, क्या कितना लेट होगा, क्या एक्सपेक्टेड, वो सब बताएगा। तो ये चैटबॉट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, okay, that can communicate with students through text or voice and provide information or assistance। वो स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देगा, टेक्स्ट में देगा और वॉइस में देगा, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, असिस्ट करेगा। वही है चैटबॉट का काम, वही है। और 24/7 डाउट रेजोल्यूशन, कोई भी डाउट है वो 24 आवर्स के लिए रेडी है। कोई भी स्टूडेंट उसको क्वेश्चन पूछ रहा है एट एनी टाइम, वो एक्सप्लेन करेगा पूरा डाटा को। और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस में बताया था कि आपको कब फी पेमेंट करना है, रूटीन क्वेश्चंस कैन आंसर रूटीन क्वेश्चंस दैट डू नॉट रिक्वायर टीचर्स पर्सनल इंटरवेंशन। स्टूडेंट आस्क्स व्हेन इज द फी पेमेंट डेडलाइन, वेयर इज द कंप्यूटर लैब, हाउ डू आई एनरोल इन द कोर्सेस, वो पूरा बताएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का पूरा डाटा उसके पास है। तो इंस्टीट्यूशन ने कंप्यूटर कंसल्टेंसी का हेल्प लिया और पूरा डाटा प्रोवाइड कर दिया,
ठीक है, तो आप जो भी चैटबॉट को वो इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट के ऊपर चैटबॉट है, उसको जो भी क्वेश्चन पूछोगे वो बताएगा। ठीक है, इंस्टेंट फीडबैक, आपको इंस्टेंट फीडबैक चैटबॉट्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड इमीडिएटली टेल देम वेदर देयर आंसर इज करेक्ट वन और नॉट। इंस्टेंट फीडबैक भी देगा। ठीक है, तो उस तरीके से मैं थोड़ा ट्राई किया एग्जाम्पल देके। सेकेंड वन है वर्चुअल रियलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्चुअल सराउंडिंग एक क्रिएट किया जाएगा जिसमें 3D एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। ओके, उसमें क्या है, जो VR का एक्चुअली इक्विपमेंट्स है वो इक्विपमेंट्स फिक्स होगा, और आपको एक VR गगल्स आप लगाओगे तो आप एक वो रियल एनवायरनमेंट नहीं, वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो उसके अंदर आप जब देखोगे, सपोज आप हार्ट को देखो, आप जब ऑब्जर्व करोगे, रियल माने एक रियल एक्सपीरियंस है, आप रियली फील करोगे कि जैसे ब्लड उसमें फ्लो कर रहा है हार्ट में, तो पूरा डिटेल्स आप सोलर सिस्टम जैसे लग रहा है कि आप पूरा सोलर सिस्टम को देख रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज जो है 3D एनवायरनमेंट एक क्रिएट होगा। ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड 3D एनवायरनमेंट। अभी स्कूल्स में AR VR लैब बन रहा है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। मैं फर्स्ट वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बता रहा हूं। वो आपको रियल सराउंडिंग में नहीं लेगा, वो आपको एक वर्चुअल सराउंडिंग में लेगा, मगर उसमें आपको पूरा अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, पूरा प्रैग्मेटिक नॉलेज मिलेगा। और वो उसका जो VR का जो इक्विपमेंट्स वो फिक्स होगा। ठीक है, और आपको VR का जो गॉगल्स है आप लगाओगे, तो लगाने से आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में चले जाओगे। ठीक है, और उसमें पूरा आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन जैसे मिलेगा। रियली आप सर्जरी देख रहे हो, जैसे सर्जरी चल रहा है, पूरा कंप्लीटली आपका सामने सर्जरी चल रहा है, मगर एक्चुअली रियली नहीं, आपको एक्सपीरियंस आप कर रहे हो। जैसे केमिस्ट्री आप इक्वेशन में आप कभी भी जैसे फिजिकली आप कर रहे हो, कोई भी केमिकल्स बाहर आ सकता है, मगर इसमें क्या है, जब आप 3D एनवायरनमेंट में हो, वर्चुअल रियलिटी से आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें पूरा क्लियर है कि वो केमिकल को लिया गया और उसमें ये रिएक्शन हुआ, मगर उसमें क्या है, चांस नहीं है जो केमिकल जो स्पिल ओवर, क्योंकि वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में चल रहा है। मगर आपको स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, एक प्रैग्मेटिक नॉलेज मिलेगा। उसमें क्या है, चाइल्ड का क्रिएटिविटी डेवलप होगा, ये बहुत अच्छा है। तो वही है, virtual reality is a technology that creates a computer generated 3D environment in which students can explore and interact with objects if they were actually present there। माने एक्चुअली जैसे लगेगा कि रियल एक्सपीरियंस है, वर्चुअल एक्सपीरियंस है, एक्चुअली रियल में माने फिजिकली वो नहीं हो रहा है, मगर वर्चुअल में हो रहा है, और वो रियल एक्सपीरियंस ले रहा है, जैसे वो खुद कर रहा है, जैसे वो खुद एक्चुअली इट मींस हार्ट में जो ब्लड सपोज फ्लो कर रहा है वो देख रहा है, कि सोलर सिस्टम को वो पास में देख रहा है कि सोलर सिस्टम में क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे रियली वो इट मींस केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आता है इसी के ऊपर, इमर्सिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मैं बताया कि जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जो 3D एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, उसमें आपको जैसे एक्चुअली वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है, मगर आप जो एक्सपीरियंस होगा, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप पास में पूरा देख रहे हो। इंस्टेड ऑफ ओनली रीडिंग अबाउट समथिंग इन ए टेक्स्ट बुक, स्टूडेंट्स कैन एक्सपीरियंस इट वर्चुअली। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ए डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट, आप बुक में एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम देख रहे हो, खाली जस्ट सिंपली देख रहे हो, मगर यहां पे क्या होगा, स्टूडेंट्स कैन यूज VR टू एंटर ए 3D मॉडल ऑफ द हार्ट एंड ऑब्जर्व हाउ ब्लड फ्लोज थ्रू इट। तो अदर एग्जांपल्स, एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम, एग्जामिनिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, विजिटिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। जैसे आप ताजमहल, तो रियल वर्चुअल में आप रियली फिजिकली ताजमहल के अंदर नहीं हो, मगर वर्चुअल में आप जैसे ताजमहल के अंदर हो, पूरा ऑब्जर्व कर रहे हो, पूरा ताजमहल का ईच एंड एवरी कॉर्नर आप देख रहे हो, पूरा जैसे आप फिजिकली प्रेजेंट होकर जो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हो, यहां पर भी वर्चुअल मोड में भी, वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी आप मॉन्यूमेंट्स के ऊपर पूरा डाटा कलेक्ट कर रहे हो। एक फील्ड ट्रिप, वर्चुअल फील्ड ट्रिप, एक्चुअल फिजिकल फील्ड ट्रिप नहीं है, वर्चुअल फील्ड ट्रिप है। सपोज कोई एक मॉन्यूमेंट्स आप फिजिकली नहीं है, वर्चुअल मोड में आप जैसे उसका अंदर जा रहे हो, ये सब स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्या क्या स्ट्रक्चर था, ये मॉन्यूमेंट्स क्यों फेमस था, क्या है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पूरा डाटा आपको कलेक्ट होगा वर्चुअल में।
तो ये एक रियल एक्सपीरियंस मिलता है इसमें, एक्सप्लोरिंग द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेनिफिट क्या है ना, डिफिकल्ट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बिकम इजियर। तो उसमें क्या है, जो डिफिकल्ट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है बिकम इजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और सेकेंड वन दिया है एक सेफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मैं बताया था सेफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आप डायरेक्टली फिजिकली केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो, ये चांस है कभी कोई केमिकल्स आपका सपोज बॉडी के ऊपर गिर सकता है, मगर यहां पर क्या है, आप वर्चुअली आप केमिकल रिएक्शंस को देख रहे हो और पूरा एकदम रियल एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हो। तो भाई सम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कैन बी डेंजरस और एक्सपेंसिव इन द रियल वर्ल्ड, वी आर अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस देम सेफली। एग्जाम्पल दिया है, केमिस्ट्री स्टूडेंट कैन परफॉर्म ए वर्चुअल chemical experiment without the risk of spilling chemicals or causing an accident. Similarly, medical students can practice surgical procedure virtually surgical procedures को medical students देखेंगे। तो ये जो 3D environment create होगा, ये जो virtual reality बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, इट मीन्स AR VR लैब बन रहा है, ठीक है। तो ये जो VR लैब होगा, ये जो एक्चुअली द स्टूडेंट्स एक्चुअली एक रियल एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। हायर एंगेजमेंट, VR मेक्स लर्निंग इंटरेक्टिव एंड हैंड्स ऑन रादर देन सिंपली रीडिंग। हैंड्स ऑन इट मींस जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्चुअली आप नहीं कर रहे हो, मगर वर्चुअल में आप जैसे पूरा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, इससे आपको लग रहा है रियल एक्सपीरियंस। तो ये हायर एंगेजमेंट। तो इंस्टेड ऑफ यहां पर देखिए, इंस्टेड ऑफ रीडिंग अबाउट एंशिएंट रोम, स्टूडेंट्स कैन वर्चुअली वॉक थ्रू ए रिकंस्ट्रक्टेड रोमन सिटी। माने जैसे आप जैसे बुक में पढ़ रहे हो कि ये रोमन सिटी है, उसमें ये एक्चुअली सब मॉन्यूमेंट्स है कि हेरिटेज साइट है, एवरीथिंग है। तो आप वर्चुअल मोड में, आप 3D मॉडल में एक वर्चुअल लैब के अंदर आप जब हो और आप रोमन सिटी के अंदर जैसे आप रोमन सिटी में घूम रहे हो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, मगर वर्चुअल मोड में, वो रियल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उसमें देखिए एक एग्जाम्पल, एक पिक्चर में दिखाया, एक जो VR गगल्स है उसको लगाने के बाद एक वर्चुअल लैब के अंदर आप पूरा एक्सपीरियंस जो है ले रहे हो, वर्चुअल एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे ह्यूमन हार्ट हो, ठीक है, चाहे कोई केमिकल सपोज रिएक्शन हो, आप उसको वर्चुअल मोड में रियल एक्सपीरियंस ले रहे हो, ठीक है। मगर उसमें क्या है, वर्चुअल लैब जो बनाएंगे उसमें जो भी VR का जो इक्विपमेंट्स होगा ये सब हम फिक्स करेंगे, ठीक है, एक वर्चुअल लैब बनाएंगे, ओके, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट वन, इसमें और एक चीज बता रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है और वर्चुअल रियलिटी क्या है। अच्छा, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा। ऑगमेंटेड रियलिटी में एक्चुअली सपोज उसका आप है, सपोज बुक में एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, उसमें क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, टैबलेट चाहिए। ऑगमेंटेड, सपोज ऑगमेंटेड के लिए क्या क्या चाहिए, सपोज मोबाइल चाहिए कि टैबलेट चाहिए, ठीक, कि जो AR ग्लास चाहिए, AR ग्लास। तो इसमें क्या है, आप है, तो जो बुक में एक पिक्चर है, सपोज ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, आप जो AR रिलेटेड जो AI आप है उसको आप डाउनलोड किया है, तो उसमें आप जब वो AI AI आपको ओपन करोगे और वो पिक्चर के ऊपर ले जाओगे तो पूरा जैसे रियल लगेगा, मगर आप एक्चुअली रियल वर्ल्ड में हो, मगर जो पिक्चर बुक में है और यहां पर जब आपका स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आएगा कि टैब का स्क्रीन के ऊपर आएगा वो कि AR ग्लास है, AR ग्लास ले जाओ पिक्चर के ऊपर, ठीक है, और पूरा वो रियल पिक्चर आएगा, मगर आप एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में हो। इसमें जो VR है वो आप फिजिकल वर्ल्ड, आप वर्चुअल वर्ल्ड में थे, मगर AR केस में क्या है, आप मोबाइल टैब और जो ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास है उसको यूज करके कोई भी पिक्चर को आप रियली देख सकते हो और उसके ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए AR जो है adds डिजिटल थिंग्स टू द रियल वर्ल्ड और VR रिप्लेसेस द रियल वर्ल्ड विथ ए वर्चुअल। जो VR में बताया वो वर्चुअल वर्ल्ड है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, तब आप कोई इट मींस 3D मॉडल को एंजॉय कर सकते हो। मगर AR में कोई डिजिटल थिंग्स को हम ऐड करेंगे,
टू द रियल वर्ल्ड में। तो ये दोनों को आप रिमेंबर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस में दे दिया, इसके ऊपर भी हम पिक्चर बेस में देखेंगे। जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, आर्ट्स कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन और इमेजेस टू द रियल वर्ल्ड। ठीक है, और इसमें देखिए वर्चुअल में क्रिएट से कंप्लीटली कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट हम क्रिएट, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे। मगर इसमें क्या है, ऑगमेंटेड को मैं बताया, ऑगमेंटेड क्या है, आप जैसे एआर ग्लास है, एआर ग्लास है, तो एआर ग्लास को आप बुक में एक पिक्चर है, तो पिक्चर के ऊपर वो ग्लास में आप देख लो। ठीक है, वो जैसे आप गूगल ग्लास है, आप गूगल ग्लास देखिए, वो एआर है, जब लेकर जाओगे उसमें पूरा इंफॉर्मेशन आपको रियली लगेगा। वैसे मोबाइल में टैब में आप डाउनलोड कर दीजिए एआर रिलेटेड एआई, आपको जो ऑगमेंटेड रियलिटी रिलेटेड एआई आप डाउनलोड कर दीजिए मोबाइल में, और आप बुक में एक पिक्चर है कि एक मॉन्यूमेंट है कि हेरिटेज साइट है कि ह्यूमन हार्ट है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो पिक्चर के ऊपर आप जब देखोगे तो जो इट मींस मोबाइल फोन का जो स्क्रीन में जो पिक्चर का पूरा डिटेल्स आएगा, आपको रियल लगेगा जैसे, तो वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। मगर वीआर में क्या है, आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। रियल वर्ल्ड यू कैन स्टिल सी द, यहां पर रियल वर्ल्ड में हो, फिजिकल वर्ल्ड में आप हो ऑगमेंटेड रियलिटी में, मगर यहां पर आप वर्चुअल वर्ल्ड में हो, रियल वर्ल्ड में नहीं हो, आप वर्चुअल वर्ल्ड में रहोगे, वर्चुअल रियलिटी में। इसमें इक्विपमेंट स्मार्टफोन, टैबलेट, एआर ग्लासेस यूज करोगे एआर में, मगर वीआर में वीआर हेडसेट है, गॉगल्स है एंड कंट्रोलर्स है। आपको एक गॉगल्स, वीआर गॉगल्स आप लगाओगे, और उसमें जो इक्विपमेंट्स फिक्स होगा, वीआर लैब के अंदर आप जाओगे, ये सब 3D मॉडल्स को आप देखोगे। ठीक है, आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में जैसे रियल एक्सपीरियंस आप गेन करोगे। ठीक है, और इसमें क्या है, एक्सपीरियंस रियल प्लस डिजिटल, ऑगमेंटेड में ये कंप्लीटली वर्चुअल रियलिटी। एग्जांपल इन एजुकेशन, पॉइंट ए फोन, ठीक है, पॉइंट ए फोन एट ए ह्यूमन स्केलेटन इन ए टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में ह्यूमन स्केलेटन है, और आप फोन में जो एआर रिलेटेड एआई आप डाउनलोड कर चुके हो, और फोन स्क्रीन को लेके वो जो ह्यूमन स्केलेटन टेक्स्ट बुक में है, आप उसके ऊपर लगा के आप देखिए, एंड ए 3D स्केलेटन अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, 3D स्केलेटन आ जाएगा और पूरा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। मगर यहां पे एग्जांपल है वर्चुअल रियलिटी में स्टूडेंट वियर्स है, आपको पहनना पड़ेगा वीआर वर्चुअल हेडसेट एंड एंटर से 3D ह्यूमन बॉडी एनवायरनमेंट टू एक्सप्लोर द स्केलेटन। तो यहां पर जो है आपको एक हेडसेट मिलेगा, और आप वर्चुअल लैब के अंदर जाइए, वहां पर एक 3D ह्यूमन बॉडी एनवायरनमेंट है, आप वहां पर पूरा स्केलेटन आप जैसे पास में आप पूरा देख रहे हो स्केलेटन को पूरा, आप वहां पर आप अब्स्ट्रैक्ट जो कंप्लीट नॉलेज आप इंफॉर्म, मगर वर्चुअल वर्ल्ड में। ठीक है, आप रियल वर्ल्ड में नहीं रहोगे, मगर यहां पे क्या है, ऑगमेंटेड में आप फिजिकल वर्ल्ड में रहोगे, रियल वर्ल्ड में, मगर उसमें कुछ इक्विपमेंट जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, एआर ग्लासेस को यूज करके आप कोई 3D ऑब्जेक्ट, इट मींस वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली कन्वर्ट टू 3D ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा, मूवमेंट रिलेटेड में यू रिमेन अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, क्योंकि आप फिजिकल सराउंडिंग में हो, प्रॉब्लम नहीं है एआर केस में, मगर वीआर केस में आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो, यू फील इमर्स्ड इनसाइड द वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर एक मैं आपको दिखा रहा हूं, एक आप टैबलेट के ऊपर आप देख रहे हो, ह्यूमन हार्ट को देख रहे हो, तो आप टैबलेट यूज किया, टैबलेट में आप एक जो ऑगमेंटेड रियलिटी एआई आप यूज किया। ठीक है, और वो बुक में पिक्चर है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट का पिक्चर है बुक में, और आप टैब को लेकर जाओ। ठीक है, और जस्ट पॉइंट ओवर द पिक्चर गिवन इन द बुक, वो ह्यूमन हार्ट पूरा आपका 3D मॉडल के आकार में आ जाएगा टैब का स्क्रीन में, और पूरा आप डिटेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। देखिए, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी, पूरा राइट एट्रियम, पूरा डिटेल्स आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक थर्ड वन है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जो एलएमएस है, एलएमएस का एग्जाम्पल वही है, जैसे आपका मूडल है, आपका गूगल क्लासरूम है, आपका कान्वा है, ये सब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जैसे गूगल क्लासरूम में हम स्टूडेंट्स को उनका मेल आईडी कलेक्ट करेंगे, और
स्टूडेंट्स को हम ऐड करते रहेंगे और जो भी मटेरियल्स उसमें हम अपलोड करेंगे तो स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। कोई स्टूडेंट एब्सेंट है फिजिकल क्लासरूम में, मगर वो उसको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो गूगल क्लासरूम जैसे जो मूडल, ये सब जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, डिलीवर, मैनेज एंड ट्रैक लर्निंग। थिंक ऑफ एन एलएमएस एज ए वर्चुअल क्लासरूम और डिजिटल स्कूल। माने इट मीन्स पूरा आप जब स्टूडेंट्स को ऐड कर दोगे, सपोज एक क्लास का 40 स्टूडेंट्स है, उसमें डिटेल्स कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टीचर का नेम है, किस किस टाइम में आपका सपोज आपका पीरियड है, डिटेल्स उसमें डाटा रहेगा। ठीक है, तो डिटेल्स डाटा से आप अटेंडेंस ले सकते हो। ठीक है, एक्टिविटी करा सकते हो, असेसमेंट करा सकते हो, वर्कशीट करा सकते हो, और उसमें क्वेश्चन जैसे फ्रेम कर सकते हो, जैसे मैं बताया जो आपका गूगल फॉर्म है। ठीक है, तो ये सब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। पूरा आप स्टूडेंट्स को ट्रैक करते रहोगे, और जो स्टूडेंट्स एक्चुअली फिजिकल क्लासरूम में एब्सेंट रहेगा वो भी उसको पूरा डाटा मिलता रहेगा वहां पे, और पूरा स्टूडेंट्स को आप असेस करते रहोगे और इवेलुएट करते रहोगे। तो सेंट्रलाइज्ड कंटेंट डिलीवरी, जैसे ऑल इंपोर्टेंट लर्निंग मटेरियल्स कैन बी केप्ट इन वन प्लेस। फॉर एग्जांपल स्टडी मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, अनाउंसमेंट्स, टेस्ट एंड क्विज, जैसे सब रहेगा एक प्लेटफॉर्म में। तो आप स्टूडेंट्स को ऐड करना है, ठीक है, उनका मेल आईडी को ले जाइए, स्टूडेंट्स को ऐड कर दीजिए। ठीक है, और उसमें आप अटेंडेंस लीजिए। ठीक है, और उसमें कौन पूरा डिटेल्स आप फर्स्ट फीड कीजिए, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आपका नाम क्या है, पूरा स्टूडेंट्स को ऐड करोगे, किस किस टाइम में, सपोज मंडे को कौन सा टाइम में आपका पीरियड है कि ट्यूसडे, पूरा डिटेल्स रहेगा। और उसमें जो चैप्टर पढ़ाओगे उसको वो उसका जो मटेरियल है आप उसमें अपलोड करोगे, और उसका वीडियो को भी अपलोड करोगे। ठीक है, जो चाइल्ड एब्सेंट रहेगा उसको भी मिलेगा। और आप एग्जामिनेशन कीजिए, पूरा डाटा आपको एक एक सिंगल स्टूडेंट का चेक करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एलएमएस है वो ही चेक करेगा और फीडबैक देगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स स्टूडेंट लॉग इन इनटू एलएमएस एंड फाइंड्स द मैथ वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, असाइनमेंट्स, क्विज। तो एलएमएस कोई सपोज मैथ रिलेटेड लर्निंग मैनेज, सपोज मैथ रिलेटेड एलएमएस है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप लॉग इन करोगे और वो मैथ लेसन, ठीक है, सपोज त्रिगोनोमेट्री लेसन फर्स्ट वो डिस्कस किया, उसके ऊपर एग्जामिनेशन किया। एग्जामिनेशन करने के बाद एक्चुअली त्रिगोनोमेट्री में किस पार्ट में सपोज आप सॉल्व करो, मगर हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट में आप वीक हो, तो वो डिटेक्ट किया कि इस पार्ट में ये वीक है। कि मैथ्स में सपोज आपका अलजेब्रा पार्ट में आप वीक हो, कि त्रिगोनोमेट्री पार्ट में वीक हो, कि ज्योमेट्री पार्ट में वीक हो, तो वो एग्जामिनेशन करके डिटेक्ट करेगा, और फिर जिस पार्ट में आप वीक हो उसी में फिर सम लाइव एग्जांपल्स देता रहेगा, फिर आप लर्न करते रहोगे, फिर धीरे धीरे वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा, आप फिर आंसर करोगे। तो धीरे धीरे आप सिंपल से वो कॉम्प्लिकेटेड लेता जाएगा, और जिस चैप्टर में आप वीक थे अभी आपको वो एक्सपोर्ट करा देगा। ठीक है, उसमें आपको सब कुछ पीडीएफ देगा, वीडियो लेक्चर्स देगा, असेसमेंट होगा, क्विजेस होगा। ठीक है, और वो आपको मीन्स उसका जो ट्यूटर से वर्चुअल ट्यूटर आपको पढ़ाता जाएगा, और आपको लेसन प्रोवाइड करेगा, पीडीएफ प्रोवाइड करेगा। तो इसमें आपको वो अल्टीमेटली जब एग्जामिनेशन है आपको फीडबैक देगा, और किस एरिया में आपका वीक है, और उसी के ऊपर आपको फिर लेसन कंटेंट देगा, तो आप लर्निंग करते रहोगे। तो ये सब है। ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट वन, प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। एन एलएमएस कैन रिकॉर्ड एंड एनालाइज स्टूडेंट एक्टिविटीज, आपका अटेंडेंस, टेस्ट स्कोर्स, असाइनमेंट सबमिशंस, प्रोग्रेस थ्रू ए कोर्स, मिस डेडलाइंस, ये सब वो ट्रैकिंग करता रहेगा। आप देखिए जो कोविड पीरियड टाइम में गूगल फॉर्म में, ओके, गूगल फॉर्म में क्वेश्चन हो रहा था, और उसमें पूरा डिटेल्स आ जाएगा, टीचर को इतना चेक, वो ऑटोमेटिकली हम क्वेश्चन फ्रेम कर दिए और उसमें आंसर दे दिए, तो ऑटोमेटिकली वो चेक हो जाएगा, और कितना स्टूडेंट्स मोर देन 90 पूरा पाई चार्ट करके वो बता देगा, और किस एरिया में वो चाइल्ड वीक है वो भी बता देगा, पूरा असेस करेगा। तो प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स, ये सब डिटेल्स के ऊपर एलएमएस सिस्टम, ओके, अभी बहुत सक्सेसफुल है स्टूडेंट बेसिकली स्कूल लेवल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन आप देख लीजिए, डिफरेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। गूगल क्लासरूम है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, देखिए गूगल क्लासरूम में मैं बता चुका हूं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में क्या है, मीटिंग,
फाइल्स एंड असाइनमेंट्स इन वन प्लेटफॉर्म कंबाइंस चैटिंग कर सकते हो, मीटिंग्स हो रहा है, फाइल्स असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हो। फिर एक बहुत पॉपुलर है मॉडल, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ओपनली सोर्स एलएमएस, हाईली कस्टमाइजेबल एंड वाइडली यूज्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बहुत वाइडली यूज हो रहा है ये जो मॉडल प्लेटफॉर्म है। कानवास है, यूजर फ्रेंडली एलएमएस विथ पावरफुल टूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। स्कूलोजी है, कनेक्ट्स क्लासरूम कंटेंट, मैसेजेस, असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट्स। सीसॉ है, एडमोडो है, ब्लैकबोर्ड लर्न है, ब्लैकबोर्ड लर्न पॉपुलर एलएमएस इन हायर एजुकेशन फॉर कोर्सेज कंटेंट एंड, या हायर एजुकेशन के लिए, इसको भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। D2L ब्राइट स्पेस है, मॉडर्न एलएमएस विथ स्मार्ट टूल्स फॉर एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। टैलेंट एलएमएस है, इजी टू यूज एलएमएस फॉर ट्रेनिंग, ऑनबोर्डिंग एंड ऑनलाइन कोर्सेस। कोर्सेरा है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफरिंग कोर्सेस, कोर्स ऑफर करता है एंड सर्टिफिकेशंस फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज। यूडेमी है, एलएमएस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू ट्रेन एंड अपस्किल एम्प्लॉइज, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है उडेमी के ऊपर। साकाई, ओपन सोर्स एलएमएस यूज्ड बाय स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। और ओपन इडेक्स, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग ऑनलाइन कोर्सेस। न्यू एलएमएस, तो इस तरीके का ये सब एलएमएस ओके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो स्कूल लेवल में बहुत पॉपुलर मॉड्यूल है, गूगल क्लासरूम है। और आप देखेंगे बिजनेस रिलेटेड में उडेमी इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन का, ओके एलएमएस फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन एंड अपस्किल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग मिलेगा और उनका कैसे स्किल इंप्रूव होता जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्सेरा भी क्या है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कोर्स ऑफर करता है और टॉप यूनिवर्सिटीज में सर्टिफिकेशन कोर्स भी देता है, सर्टिफिकेट्स भी देता है, ठीक है। तो ये सब जैसे ब्लैकबोर्ड लर्निंग है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्लैकबोर्ड लर्निंग में पॉपुलर एलएमएस इन हायर एजुकेशन, ओके फॉर कोर्सेज कंटेंट एंड ग्रेड्स, ठीक है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे स्कूलोजी, ओके कनेक्ट्स क्लासरूम्स कंटेंट, मैसेजेस एंड असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट्स, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, क्लियर। तो एलएमएस लास्ट देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन है कि एलएमएस प्लेटफॉर्म्स हेल्प्स टीचर्स मैनेज क्लासेस, शेयर मटेरियल्स, ट्रैक प्रोग्रेस, कंडक्ट असेसमेंट्स एंड इंप्रूव ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। और उसी में एलएस ऑटोमेटेड असेसमेंट है, आप एक 20 क्वेश्चन बेस ऑनलाइन क्विज कर दीजिए और क्विज स्टूडेंट्स को दे दीजिए, ऑटोमेटिकली चेक ऑब्जेक्टिव आंसर्स, कैलकुलेट मार्क्स, डिस्प्ले द रिजल्ट, रिकॉर्ड द स्कोर एंड सेंड डेडलाइन रिमाइंडर्स। तो ये सब डिटेल्स आ जाएगा जैसे गूगल फॉर्म में, ठीक है। तो एलएमएस ऑटोमेटिकली परफॉर्म सर्टेन असेसमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ठीक है, बहुत कॉमन चीज है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट वन कुछ ट्रेड्स के ऊपर देखेंगे, ट्रेड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट वन है एक है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ठीक है। ये बहुत कॉमन है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग क्या है, एक मैथ सपोज मैं बता रहा हूं, मैथ एआई ऐप है, इसके बाद कुछ पॉपुलर एआई ऐप के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। मैथ एआई ऐप है, तो आपको फर्स्ट आप लेसन को लर्न करोगे, उसके ऊपर स्टूडेंट आंसर्स क्वेश्चंस, आपको वो क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर करोगे, फिर एआई एनालाइजेस करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स एंड एरर पैटर्न्स, किस क्वेश्चन कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है और किस एरिया में आपका एरर है वो डिटेक्ट करेगा। तो फिर आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस और लर्निंग गैप्स को वो डिटेक्ट करेगा, ओके जब आप वो डिटेक्ट करेगा कि कितना करेक्ट आंसर है कितना इनकरेक्ट आंसर है, किस एरिया में आपका एरर है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, किस एरिया में आपको ज्यादा मार्क मिला है, किस एरिया में आपको कम मार्क मिला है, आपका क्या लर्निंग गैप्स है, उसको वो डिटेक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल है माइंड स्पार्क, ओके ये एक एआई प्लेटफॉर्म है, एआई ऐप है, उसमें आप जाइए माइंड स्पार्क में, ठीक है। तो फर्स्ट आप एक लेसन लर्न करोगे, लेसन लर्न के बाद उसका वीडियोस को आप ऑब्जर्व करोगे, आपको लेसन के ऊपर पीडीएफ मिलेगा, फिर आपको वो क्वेश्चंस पूछेगा, आप आंसर करोगे, आंसर करने के बाद कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है, किस एरिया में आपका एरर हो रहा है, आपका किसमें स्ट्रेंथ है किसमें वीकनेस है, वो आपका लर्निंग गैप्स को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन, तो आपका फिर आपको जिस एरिया में आपको कम मार्क मिल रहा है उसके ऊपर फिर आपको लाइव लेसन्स देगा, उसके ऊपर फिर थोड़ा सिंपल आकार में आपको कुछ एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स देगा, फिर धीरे धीरे आपके फिर क्वेश्चन पूछेगा कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, तो एडजस्ट डिफिकल्टी लेवल, फिर आपको प्रोवाइड रिमेडियल एक्सरसाइजेस और कंटेंट,
तो फिर वो आपका स्टूडेंट प्रोग्रेस आर्ट इज और ओन पेस, तो धीरे धीरे वो आप खुद ही प्रोग्रेस करते रहोगे। तो यही है सब अदर अडाप्टिव, यही इसको बोलते हैं अडाप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ओके, जैसे आपका ड्रीम बॉक्स लर्निंग है, ये सब है एआई आप, ड्रीम बॉक्स लर्निंग, स्मार्ट स्पारो, न्यूटन आल्टा, डीप स्कूल which use student performance data to adjust learning difficulty, ओके, और लर्निंग पाथवेज। तो ये सब है अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, उनका यही है। आप स्पेसिफिक जैसे ड्रीम बॉक्स लर्निंग है, इसमें देखिए एक ड्रीम बॉक्स लर्निंग है, इसमें वो मैथ्स के ऊपर फर्स्ट मैथ्स लेसन। ओके, आप ड्रीम बॉक्स लर्निंग में आप लॉग इन कीजिए, ठीक है, आपका पूरा डाटा दीजिए, आपको मैथ्स लेसन, फर्स्ट आप मैथ्स लेसन ऑब्जर्व करोगे, वीडियो लेक्चर देखोगे, उसके ऊपर पीडीएफ मिलेगा, फिर वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा, आप आंसर करोगे, कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है, किस एरिया में एरर है, ठीक है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, किस एरिया में आपका लर्निंग गैप है, फिर वो उसी जिसमें आपका लर्निंग गैप है कि जिस एरिया में आपका वीकनेस है, वो उसी के ऊपर और सिंपल एग्जांपल्स देगा, सिंपल ट्रिक्स देगा। तो धीरे धीरे फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो धीरे धीरे आप देखेगा कि आप उसी जिसमें वीक थे, जिसमें आपका एरर हो रहा था, जिसमें आपका लर्निंग गैप है, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कम था, वो उसको इंप्रूव करता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली लास्ट में आप उसी रिलेटेड में जो भी क्वेश्चन पूछोगे आप आराम से कर सकते हो। तो ये सब अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है स्टूडेंट्स के लिए। कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी डिस्कस में करूंगा आगे में। नेक्स्ट वन एफिशिएंसी, और एक फीचर है एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन एआई का। तो देखिए जो एआई सॉफ्ट ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग, एक ग्रेड स्कोप है, वो ऑटोमेटिकली ग्रेड दे देगा, ऑटोमेटिकली ग्रेड मिलेगा, उसमें पूरा डाटा है स्टूडेंट्स का, तो टीचर्स को टाइम नहीं लगेगा ग्रेडिंग देने के लिए, ठीक है। आप एक है टाइम टेबल स्टूडियो, वो स्कूल आप अभी देखिए जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, आप देखिए बहुत प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनका एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है, वो क्या करे पर्टिकुलरली एक एक स्टूडेंट को लॉगिन आईडी दिया है और उसका स्पेसिफिक वेबसाइट है, आप वेबसाइट ओपन करो, आप उसमें क्या है एक टाइम दे देगा कि आज 5 PM टू 11 PM के अंदर आपका आप चूज करोगे प्रोफेसर्स, सपोज 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर आप टीचर चूज करोगे, आप उस डिफरेंट स्लॉट से, तो डिफरेंट स्लॉट के ऊपर आपको आप टीचर चूज करते रहोगे, फिर ऑटोमेटिकली जब टीचर आप चूज कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा स्लॉट के हिसाब से। तो ये सब ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग, स्कूल शेड्यूलिंग, ये ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि डाटा, हम डाटा दे देंगे तो डाटा के हिसाब से वो, मैं जैसे अभी एक एग्जांपल दिया, आप देखिए उनका स्पेसिफिक वेबसाइट, आपको स्पेसिफिक लॉगिन आईडी दे रहे हैं, और लॉगिन आईडी पासवर्ड में जाइए, फिर स्टूडेंट प्रोफाइल में जाइए और उसमें आपको वो टाइमिंग देगा, इसी टाइम के अंदर आप आपका जो क्लासेस है, आपका प्रोफेसर्स को आप खुद चूज करोगे कि इस सब्जेक्ट में सपोज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कौन सा प्रोफेसर आपको पढ़ाएगा, वो स्लॉट में जाइए, देखिए उसके पास सपोज 5 सीट्स ओनली वैकेंट है, आप एक ले जाइए। तो ऐसे आप आपका प्रोफेसर्स को चूज करोगे, चूज करने के बाद जैसे चारों सब्जेक्ट में आप चूज कर दिया, फिर ऑटोमेटिकली टाइम टेबल स्लॉट आ जाएगा। तो एक मगर एक टाइमिंग के अंदर आपको वो सब करना है, तो ऑटोमेटिकली टाइम टेबल आ जाएगा। तो ये एफिशिएंसी, इसमें इतना पेपर वर्क का जरूरत नहीं है। ओके, उसमें कि कौन सा प्रोफेसर किस किस स्लॉट में पढ़ाएंगे और क्या क्या टाइमिंग रहेगा क्लास का, पूरा डिटेल्स आप दे दीजिए और इस तरीका का एआई आपको यूज कीजिए। और जो ग्रेड स्कोप और टाइम टेबल स्टूडियो, उसमें आपका ऑटोमेटिकली टीचर्स ग्रेडिंग देना, ये बहुत टाइम लगता है, तो ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग आ जाएगा और स्कूल शेड्यूलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एआई कैन हैंडल रूटीन टास्क लाइक ग्रेडिंग, शेड्यूलिंग, फ्रीइंग ऑफ टीचर्स टू स्पेंड मोर टाइम टीचिंग एंड सपोर्टिंग स्टूडेंट्स। तो उसमें टीचर इतना ज्यादा टाइम नहीं देंगे, टीचर का काम है ओनली वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वो टीचिंग में देंगे और प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स। तो एआई कैन डेवलप इंटरेक्टिव एंड कैप्टिवेटिंग एजुकेशनल टूल्स सच एज वर्चुअल लैब्स एंड सिमुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंप्रूव्ड एजुकेशनल कंटेंट। देखिए गैमिफाइड लर्निंग एंड वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स मेक लेसन्स मोर एंजॉयबल एंड इजियर टू रिमेंबर। देखिए गैमिफाइड लर्निंग्स में क्या है, सपोज इसके ऊपर मैं बता रहा हूं, आप फ्रैक्शन के ऊपर आप जाइए, वो इसमें बहुत तरीका का एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है, कि हम उसका जो फ्रैक्शंस के ऊपर न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है,
आप कैसे ये इट मींस ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्स आपका आइडिया मिलेगा। और जो छोटा छोटा बच्चों के लिए क्या है, वो थोड़ा वो एंजॉय करेंगे, जैसे गेम जैसा लगेगा, स्टेप बाय स्टेप बोलेगा, तो पूरा फ्रैक्शन के ऊपर आपका कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। जैसे और एक बता रहा है कि वर्चुअल फील्ड ट्रिप। आप में बताया था कि वर्चुअल जो आप वर्चुअल रियलिटी लैब, इसमें इसके अंदर आप जाओगे, सपोज इसमें आप मैं बताया था वर्चुअल फील्ड ट्रिप। सपोज जैसे फिजिकल फील्ड ट्रिप होता है ताजमहल देखने के लिए, मगर अभी आप फिजिकली नहीं जाएंगे, आप वर्चुअल लैब के अंदर जाएंगे और वहां पर एक वीआर का ग्लास आप लगाओगे और पूरा आप जैसे अंदर जा रहे हो ताजमहल के अंदर, और ईच एंड एवरी कॉर्नर जैसे फिजिकल में आप जा रहे हो और आप देख रहे हो और ईच एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। यहां पर वीआर लैब के अंदर आप रियल एक्सपीरियंस ले रहे हो, मगर आप रियल वर्ल्ड में नहीं हो, वर्चुअल वर्ल्ड में हो, मगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। इस तरीका का जो एंजॉयबल जो इजियर है, तो इसमें क्या है, आपको पूरा एब्स्ट्रैक्ट और कंप्लीट नॉलेज मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन और एक ट्रेट है एआई का, एक्सेस टू रिसोर्सेस। Expanding access to education, AI-driven tools provide quality learning opportunities to students in remote और underserved communities, helping to bridge the education gap। इसके ऊपर मैं थोड़ा बता देता हूं। आप जैसे रिमोट एरिया को जाइए, आप रिमोट एरिया में क्या है, अच्छा ट्यूटर नहीं है, ओके, रिमोट एरिया में अच्छा ट्यूटर नहीं है, तो आप वर्चुअल ट्यूटर, आप एआई आपको यूज कीजिए, वर्चुअल ट्यूटर आपको मिलेंगे और वर्चुअली आप लर्निंग करोगे, कोई एआई आपको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और आपको वहां पर अच्छे से लेसन जो है उसका वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और आप इंटरेक्ट कर सकते हो जो वर्चुअल ट्यूटर है, और पूरा लेसन के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसके ऊपर पूरा डाटा मिलेगा। फिर वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर दे दोगे, और जिस एरिया में वीकनेस है वो फिर उसके ऊपर कुछ लाइव एग्जांपल्स और कुछ अच्छा एग्जांपल्स देकर आपका जो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल कम था वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है। आपका पूरा कंटेंट के ऊपर जो आप कोई ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था कि फॉर्मूला था जिसको आप यू कुड नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली बिकॉज वो ऐसा एग्जांपल्स देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रूमिंग किया जा रहा है। रिमोट एरिया में सपोज कुछ अच्छा ट्यूटर्स नहीं है, क्वालिटी टीचर्स नहीं है, तो ये वर्चुअल ट्यूटर का हेल्प लेके स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। मगर उसमें क्या है, प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए और प्रॉपर गैजेट्स जैसे मोबाइल की, टैब की, डेस्कटॉप, ये सब चाहिए, ठीक है। मगर इसमें क्या है, ये सब फैसिलिटी होने से, टैबलेट है कि मोबाइल है कि इंटरनेट फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिफिकेशन फैसिलिटी है, तो अच्छा क्वालिटी टीचर्स नहीं है, तो वर्चुअल ट्यूटर का हेल्प लेके हम पर्टिकुलर लेसन में हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिशनली एआई ऑफर्स accessibility फीचर्स दैट सपोर्ट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज ऑल्सो। आप डिसेबिलिटीज केस में सपोज एक है मैं बोलता हूं कि विजुअल इंपेयरमेंट है, विजुअल इंपेयरमेंट केस में क्या है, वो क्या करेगा, इसमें टेक्स्ट को पढ़ नहीं सकता तो वो स्पीच में कन्वर्ट कर देगा, तो इसमें वो टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा स्पीच में, ठीक है। तो वो सुनता रहेगा, जो विजुअल एम्पायरमेंट कैंडिडेट है वो स्पीच सुनता, पूरा डिटेल सुनेगा, तो जो टेक्स्ट पढ़कर वो जितना नॉलेज गेन कर सकता है वो सुनकर उतना ही नॉलेज गेन करेगा, ओके। तो इस तरीके से उसका लर्निंग जो एबिलिटी है वो इंप्रूव करता रहेगा। तो वही है इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट ऐसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और एक फीचर है 24/7 अवेलेबिलिटी। आपका कन्वीनियंट टाइम देख के आप, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप एआई आपको स्पेसिफिक, आपको कभी भी आप आपका कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। लैंग्वेज लर्निंग, कोई भी लैंग्वेज को आप लर्न कर सकते हो, कोई लैंग्वेज को, कोई भी अननोन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है और उसका प्रोनाउंसिएशन हेल्प और इंटरेक्टिव प्रैक्टिस, तो ऐसे कोई भी लैंग्वेज को आप लर्न कर सकते हो एआई आपके माध्यम से, वो आपको ट्रांसलेट कर देगा। सपोज आप इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हो, वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा हेल्प करेगा और इंटरेक्टिव प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। तो मेकिंग इजियर टू लर्न। और अर्ली इंटरवेंशन क्या है, एआई टेक्नोलॉजी कैन, अच्छा इसमें क्या है, जब एआई आप यूज कर रहे हो वो इमीडिएटली आपका लर्निंग गैप, लर्निंग चैलेंजेस को डिटेक्ट करेगा कि आपका क्या बिहेवियरल पैटर्न है, क्या आपका लर्निंग गैप है, क्या आपका लर्निंग चैलेंजेस है, तो वो उसके ऊपर आपको रिमेडियल मेजर्स करेगा और वो चाहेगा
कि आप कैसे, जिस एरिया में आपका लर्निंग गैप है, जिस एरिया में आपका लर्निंग चैलेंजेस है, इसमें आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड, ओके, सपोर्ट इन दैट एरिया, ठीक है। तो अर्ली इंटरवेंशन मिल जाएगा। टीचर असिस्टेंस, आप कैसे लेसन प्लान करोगे, आपका टीचिंग मेथड्स कैसा होगा, तो इस तरीके का फैसिलिटीज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे मिल जाएगा, ठीक है। आप कैसे आपका लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हो, आपका टीचिंग मेथड कैसा होगा, आप बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगे, बच्चों को कैसे मैनेज करोगे, उनको कैसे ग्रेड प्रोवाइड करोगे, वो कोई अटेंड, कैसे आप ऑनलाइन अटेंडेंस लोगे, ओके, तो कैसे आप उनको आप चेक नहीं करोगे आंसर्स, वो एआई आप चेक करेगा और उस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो कौन सा चाइल्ड वीक है कि कौन सा चाइल्ड एक्चुअली बेटर है, ठीक है। तो टीचर असिस्टेंस। नेक्स्ट वन, असेसमेंट एंड टेस्टिंग, ओके। AI technology can make grading, assignment, quizzes, test faster and more consistent by automatically evaluating student work. This help teachers save time and ensure fair grading. ठीक है। Predictive analysis, additionally AI can forecast how students might perform and spot those who may need extra help. By identifying these students early, schools can provide support to prevent learning difficulties before they become bigger problems. तो predictive analysis भी AI आप कर रहा है, assessment testing कर रहा है, ठीक है। और ग्लोबल कोलैबोरेशन, AI helps students and teachers from around the world work together easily, removing distance barriers and encouraging cultural exchange. तो ग्लोबल कोलैबोरेशन, आप कोई फॉरेन टीचर्स का भी हेल्प ले सकते हो, जो ट्यूटर आपका वर्चुअल ट्यूटर रहेगा वो रिलेटेड बिलोंग्स टू फॉरेन कंट्री, तो उसमें क्या है, कल्चरल एक्सचेंज होगा, ओके। रिमूविंग डिस्टेंस बैरियर्स, ओके। कॉस्ट एफिशिएंसी, इसमें कोई पेपर वर्क का जरूरत नहीं है, जैसे गूगल फॉर्म में सभी स्टूडेंट्स आप आंसर कर रहे हो और गूगल फॉर्म उसको चेक किया, मार्क दिया, उसमें कोई पेपर वर्क का जरूरत नहीं है। यूजिंग AI कैन सेव मनी ओवर टाइम बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रिंटिंग एंड शेयरिंग एजुकेशनल मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, एडवांस्ड रिसर्च, AI टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स एनालाइज डाटा मोर इजिली, enabling them to handle complex projects faster and more effectively. कोई भी जो AI टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स वो कोई भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को इजीली हैंडल कर सकते हैं और उसको वेरी इफेक्टिवली एंड इन फास्ट मैनर, ओके, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, उसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वो जो भी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज है, स्टूडेंट्स कैसे उनका टीचिंग मेथड्स इंप्रूव होगा और उनका कैसे ऑनलाइन जो क्लासेस में वो कैसे इंप्रूव करेंगे और बाकी एरियाज के ऊपर उनको न्यू टीचिंग टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ओके। AI आपके माध्यम से प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो ये सब डिफरेंट ट्रेड्स है, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफरेंट ट्रेड्स है, ठीक है। कुछ अडाप्टिव लर्निंग टूल्स, जो इंपॉर्टेंट अडाप्टिव लर्निंग टूल्स है उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद MCQ को जाएंगे। देखिए, ड्रीम बॉक्स लर्निंग, ड्रीम बॉक्स लर्निंग बहुत पॉपुलर है मैथमेटिक्स के ऊपर। इज अ स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑफर पर्सनल मैथ लेसन्स। वो आपको मैथ लेसन्स डिस्कस करेगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रिपेयर करेगा, आपका आंसर्स को चेक करेगा, किस एरिया में आपका मैथ्स में सपोज कोई किस कंटेंट में आपका वीक है और उसी के ऊपर वो और कुछ लाइव एग्जांपल्स देगा और आपको वीडियो लेक्चर्स देगा, तो आपका जो लर्निंग डिफिकल्टीज है, गैप है, उसको एडजस्ट करेगा, ठीक है। इट एडजस्ट टू टीच ईच स्टूडेंट स्किल लेवल एंड लर्निंग स्पीड टू हेल्प देम लर्न बेटर, ओके। और डुओलिंगो है, इट इज AI टेक्नोलॉजी टू क्रिएट कस्टमाइज्ड लैंग्वेज learning experience. Related to the language learning experience, it adapts lessons based on how each student progresses and provides practice exercise focused on areas that need environment. ये related to the language related है। Newton है, it is an adaptive learning tool that uses AI to study students learning habits and suggest personalized content and study tips across different subjects. ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये स्टडी टिप्स देगा, आपका जो लर्निंग हैबिट्स है, क्या आपका लर्निंग हैबिट्स रहेगा उसके ऊपर आपको गाइड करेगा और आपको सजेशन देगा, आप जो पर्सनलाइज्ड कंटेंट है आप कैसे इंप्रूव करोगे और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी टिप्स देगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो एक अच्छा AI आप है, ओके। नेक्स्ट वन, स्मार्ट स्पारो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
Smart Sparrow offers an AI-powered e-learning platform that lets teachers design interactive lessons tailored to each student's needs and preferences. स्टूडेंट्स का नीड्स प्रिफरेंसेस के आकर में कैसे टीचर्स उसका जो लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये स्पारो जो एआई पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो एक्चुअली प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द टीचर्स, प्रोवाइडिंग इट मींस गाइडिंग द टीचर्स हाउ टू डिजाइन इंटरेक्टिव लेसन्स अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड्स एंड प्रिफरेंसेस। और नेक्स्ट है कॉग्नी, इट इज एन एआई वर्चुअल ट्यूटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई वर्चुअल ट्यूटर दैट गिव्स पर्सनलाइज्ड फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स रिटन आंसर्स इन सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। It analyzes responses and offers specific advice to help students improve. So these are the AI जो adaptive learning tools, ठीक है। अच्छा, अभी हम कुछ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसी रिलेटेड में। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशियो इमोशनल लिटरेसी इन डिजिटल लिटरेसी? सोशियो इमोशनल लिटरेसी इन, अच्छा, सोशियो इमोशनल लिटरेसी इन डिजिटल लिटरेसी में क्या है? देखिए, जो आजकल जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, आपका मैसेंजर है, तो उसमें आप किसी को मैसेज करने से पहले आप सोचना है कि जो मैं मैसेज कर रहा हूं, कि कोई चीज मैं शेयर कर रहा हूं, तो वो जिसको मैं शेयर कर रहा हूं जैसे उसका प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज आप सीख रहे हो। जैसे इसमें क्या है, रेस्पेक्ट टू अदर्स इन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कैसे हम ऑनलाइन में जो भी मैसेज भेजेंगे, जो भी कंटेंट शेयर करेंगे, ठीक है, वो शेयर कंटेंट किसी को हॉट नहीं करेगा, किसी का सेंटीमेंट को हॉट नहीं करेगा। तो कोई मैसेज सेंड करने से पहले आप सोचिए कि जो मैं मैसेज भेज रहा हूं क्या सही मैसेज है, क्या उसके लिए फेवरेबल है। तो ये सब चीज सोशियो इमोशनल लिटरेसी इन डिजिटल लिटरेसी में आता है। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग साइबर स्पेस अनस्पोकन रूल्स, मास्टरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिजिटल फॉर्मेट्स। एक्चुअली जो आप ऑनलाइन में कोई भी मैसेज भेज रहे हो, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक ऐसे रूल्स वो नहीं दिया है, ठीक है, वो आपको कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है, मगर आप सोशियो जो इमोशनल लिटरेसी है, इसमें क्लियरली जानते हो कि थ्रू ऑनलाइन हाउ कैन आई कम्युनिकेट टू अदर्स, हाउ कैन आई गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स थ्रू ऑनलाइन। तो ये सब सोशियो इमोशनल इन डिजिटल लिटरेसी। तो आप इंस्टाग्राम, आप फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप में जो भी मैसेज, जो भी कंटेंट शेयर कर रहे हो, तो आप शेयर करने से पहले उसके बारे में सोचिए, ठीक है, जैसे वो गलत नहीं होगा। तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग साइबर स्पेस अनस्पोकन रूल्स, ऐसा कुछ स्पोकन वो कुछ रूल्स नहीं दिया है, मगर आपको कोई भी मैसेज भेजने से पहले आपको सोचना है किसी का सेंटीमेंट को हॉट नहीं होगा, ठीक है, और इस तरीका का मैसेज मैं नहीं भेजूंगा जो एक्चुअली बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज है जो वही सोशियो इमोशनल, वही है आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, क्लियर। तो आपका किस तरीका का ग्रैटिट्यूड रहेगा अदर्स, तो वो इसमें क्या है, थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। तो आप कैसे चैटिंग जब कर रहे हो, आप कैसा कैसा मैसेज भेजोगे, ठीक है। तो ये सब चीज को आप भेजने से पहले आपको सोचना है, ओके। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट डिजिटल नेटिव्स? अच्छा, ये डिजिटल नेटिव्स क्या है? डिजिटल नेटिव्स क्या है? पर्सन्स ग्रोन ऑफ इन एक्चुअली टेक्नोलॉजी सराउंडिंग्स, टेक्नोलॉजिकल सराउंडिंग्स। आप ग्रोन कर रहे हो एक टेक्नोलॉजिकल सराउंडिंग्स में। टेक्नोलॉजिकल सराउंडिंग्स क्या है? आपके पास विभिन्न तरीका का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आप ग्रो कर रहे हो। जैसे आपके पास टैबलेट, आप जानते हो कैसे यूज होगा, डेस्कटॉप कैसे यूज होगा, मोबाइल्स कैसे यूज होगा, उसमें कैसे किस तरीके का आपको कैसे डाउनलोड करके आप कैसे वो अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लर्न कर सकते हो। तो ये है डिजिटल नेटिव्स। जैसे स्कूल में अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्मार्ट बोर्ड है, इंटरेक्टिव बोर्ड है, ठीक है, और वर्चुअल लैब है, ऑगमेंटेड लैब है। तो वही स्टूडेंट्स एक्चुअली ग्रूमिंग अंडर इट मींस डिजिटल टेक्नोलॉजी, वही है डिजिटल नेटिव्स। अच्छा, इसमें सब कुछ है। तो इसमें दिया है व्हाट इज कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है।
they are automatically digitally literate, they are not interested in digital technology, they are all born during the information age, they are not capable of critical thinking. देखिए डिजिटल नेटिव्स नो डाउट स्टूडेंट्स एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वर्चुअल लैब में एक्चुअली वर्चुअली वो रियल चीज को देख रहे हैं, ऑगमेंटेड लैब में, एआर लैब में वो बुक में जो पिक्चर है उसके ऊपर वो 3D मॉडल का पिक्चर क्लियरली टैब और इट मींस मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है। और इस सब होने के बाद ये नहीं है कि सब ऑटोमेटिकली डिजिटल लिटरेट बन जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम डिजिटल नेटिव्स है, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम इट मींस हमारा ग्रो हमारा हम वी आर ग्रोइंग अंडर द डिजिटल टेक्नोलॉजीज, सो ऑटोमेटिकली वी कैन इट मींस लर्न डिजिटल थिंग्स। ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, आप कैसा प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, ओके तो वो इंपॉर्टेंट है। ये मिसकंसेप्शन एक होता है कि आप डिजिटल नेटिव्स में हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी का सराउंडिंग में हो, तो आप जो भी इट मींस डिजिटल रिलेटेड मैटर में आप आराम से लर्न कर सकते हो, ऑटोमेटिकली लर्न कर सकते हो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द चैलेंज फेस्ड बाय डिजिटल लिटरेसी? डिजिटल लिटरेसी में क्या चैलेंज है? एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, lack of interest in digital tools, abundance of reliable information, lack of privacy and security concerns. Actually what is the challenge? मेन चैलेंज यहाँ पर देखिए access to technology, क्योंकि आप देखिए डिजिटल लिटरेसी के लिए आपको फास्ट गैजेट्स चाहिए, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी, हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, और नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए। तो ये सब चाहिए तब आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो जो डिफिकल्ट चैलेंज है वो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय पर्सनलाइज्ड लर्निंग थ्रू एआई? मैं अभी बताया था कुछ अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको बताया। इसमें क्या है, आपके माध्यम से आप लर्न करोगे और वो आपको गाइड करेगा, वो आपका वीकनेस को डिटेक्ट करेगा, किस एरिया में आपका एरर ज्यादा है, और उसी के ऊपर वो क्या करेगा, आपको और अच्छा एग्जाम्पल्स और थोड़ा इट मींस जो बोलते हैं ना, आप जैसे एंजॉय करोगे, आपका जिस एरिया में आपका ज्यादा रॉन्ग हो रहा है वो डिटेक्ट किया, आपको रिमेडियल मेजर्स देगा, उसी के ऊपर आपको अच्छे से बहुत फ्लेक्सिबल मैनर, बहुत सिंपल मैनर में एग्जाम्पल्स देगा, तो उसी के ऊपर फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो धीरे धीरे उसी एरिया में जिस कंटेंट के ऊपर आप वीक थे, उसी कंटेंट के ऊपर आपको धीरे धीरे वो इंप्रूव करता रहेगा और उसी कंटेंट में ऑटोमेटिकली आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो वो है इसमें जो ऑप्शन सी, एआई अडॉप्ट्स लर्निंग कंटेंट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड्स एंड परफॉर्मेंस। आपका क्या नीड्स है, आप कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हो, उस बेसिस में वो आपको लर्निंग कंटेंट देता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is an example of an adaptive learning platform? में बताया अभी, तो उसमें ड्रीम बॉक्स लर्निंग है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, कैलकुलेटर है, पावर पॉइंट है, जो है ऑप्शन ए ड्रीम बॉक्स लर्निंग। में इसके ऊपर भी डिस्कस किया, अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, एक आपका अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म जो मैथ्स लेसन के ऊपर क्या करता है, वो फैसिलिटीज देता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 6, a teacher want students to learn about the solar system. Instead of only reading about planets, students use VR, virtual reality, to explore a 3D representation of the solar system. This primarily demonstrates automated grading, immersive experiential learning, administrative automation, data encryption. वो है immersive experiential learning। मैं अभी आपको बताया था VR के ऊपर, तो VR का हेड गियर है, VR का एक ग्लास है, गॉगल्स है, आप यूज करोगे और वर्चुअल लैब में जो इक्विपमेंट्स फिक्स होगा और उसके अंदर आप वर्चुअल वर्ल्ड में रहोगे, रियल वर्ल्ड में नहीं रहोगे, पूरा सोलर सिस्टम को आप ऑब्जर्व करोगे। वो एक्चुअली वो क्या है, आप वहां पर एक जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है बहुत बेस्ट है VR लैब, जो आप रियल एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, मगर रियल वर्ल्ड में नहीं हो, आप रियल वर्ल्ड में नहीं हो, वर्चुअल वर्ल्ड में हो, मगर रियल एक्सपीरियंस ले रहे हो, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following represents the best sequence for AI supported personalized learning? सपोज आप कोई AI आप
यूज करके लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, मैथ्स लर्न कर रहे हो, साइंस लर्न कर रहे हो, वो आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या सीक्वेंस, बेस्ट सीक्वेंस रहेगा? जैसे ऑप्शन ए, एआई रिकमेंडेशन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस लर्निंग, स्टूडेंट इंटरेक्शन परफॉर्मेंस एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन फर्दर लर्निंग, टीचर एब्सेंस एआई टीचिंग एग्जामिनेशन प्रमोशन, क्वेश्चन जनरेशन ऑटोमेटिक प्रमोशन स्टूडेंट लर्निंग। इसमें देखिए ऑप्शन बी, फर्स्ट आप इंटरेक्ट करोगे। फर्स्ट इंटरेक्शन क्या है? आप लर्न किया, लेसन्स को लर्न किया, वीडियो लेक्चर है कि वर्चुअल ट्यूटर है कि पीडीएफ से आप लेसन को लर्न किया, फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया, आप आंसर दोगे, फिर वो डिटेक्ट करेगा कि किस एरिया में आपका स्ट्रेंथ है, किस एरिया में वीकनेस है, परफॉर्मेंस एनालिसिस। फिर वो आपका आइडेंटिफिकेशन, किस एरिया में आपका वीक है, किस एरिया में आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, वो आइडेंटिफिकेशन नीड्स। फिर आपको वो रिकमेंड करता रहेगा कि इस तरीके से उस कंटेंट के ऊपर वो फिर आपको गाइड करता रहेगा, सपोर्ट करता रहेगा, फिर आपका फर्दर लर्निंग वो आप ग्रो करते रहोगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए प्रोटोकॉल इन इंटरनेट कम्युनिकेशन? इंटरनेट कम्युनिकेशन में क्या प्रोटोकॉल है? टू डेकोरेट वेब पेजेस, टू सेट रूल्स फॉर हाउ डाटा इज सेंट एंड रिसीव्ड, टू स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, टू ब्लॉक अनवांटेड वेबसाइट्स। देखिए जो इंटरनेट का जो मेन प्रोटोकॉल है, टू सेट रूल्स फॉर हाउ डाटा इज सेंट एंड रिसीव्ड। उसमें आप देखा होगा, जैसे आपको आप डिवाइस में इंटरनेट, देन वेब सर्वर, जैसे आपका डिवाइस में आप इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, फिर आप वेब सर्वर को जाओगे, ओके। तो प्रोटोकॉल में क्या है, आप इसमें आपको याद रखना है, तो वेब सर्वर में आप कोई भी आपको ब्राउज करोगे कि किस तरीके का डाटा चाहिए। तो ये जो है बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू सेट रूल्स फॉर हाउ डाटा इज सेंट एंड रिसीव्ड, ओके। एक प्रोटोकॉल के ऊपर बता रहा हूं, जैसे आप बोलते हैं ना HTTPS, आप जानते हो ये बहुत सिक्योर है, जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसको यूज करने से ओनली आप इसमें जाइए HTTP में, मगर एस मिसिंग है, तो इसमें क्या है, आपका कोई भी हैक कर सकता है। सपोज आप कोई आपका पासवर्ड की लॉगिन आईडी फाईडी आप उसमें दे रहे हो, तो उसको कोई हैक कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है। मगर एस सिक्योर जब हो जाएगा तो इसको कोई हैक नहीं कर सकता। जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, पासवर्ड है कि आपका जो लॉगिन आईडी है, ये सपोज इसमें आप सर्च कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ऐसे, ठीक है। चलो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेंड डाटा ओवर HTTP विदाउट एनक्रिप्शन? तो एस यहां पर मिसिंग है, देखिए एस यहां पर सिक्योर मिसिंग है, तो इसको कोई भी हैकर्स उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। इट कुड बी इंटरसेप्टेड बाय हैकर्स। देखिए आप जो बैंक जब आप ये उसका जो पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली HTTP में करोगे तो वो कभी भी कोई हैकर्स उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? तो ये तो बहुत इजी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द एस इन HTTPS स्टैंड फॉर? एस मीन सिक्योर, और मैं बताया था ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म डिजिटल लिटरेसी? ये जो डिजिटल लिटरेसी, ये जो वर्ड है, हु एडवोकेटेड एक्चुअली फर्स्ट टाइम? प्रेंस्की, एस्ट अल्कलाई, वार्डन और पॉल गिल्स्टर। जो आंसर है ऑप्शन डी, पॉल गिल्स्टर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द अंडरपिनिंग्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी? जो अंडरपिनिंग्स मींस एक्चुअली डिजिटल लिटरेसी का इनिशियल फेज क्या था, कैसे वो स्टार्ट हुआ। तो डिजिटल लिटरेसी मींस वही है, डिजिटल लिटरेसी क्या है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है
जैसे आपका मोबाइल से, लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, और इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए, और उसमें पावर फैसिलिटी होना चाहिए। ओके, फिर आप डिजिटली आप लर्न करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, डिफरेंट एआई ऐप से। ओके, जैसे आपका गूगल में बहुत कुछ, गूगल क्लासरूम है, गूगल अटेंडेंस है, गूगल फॉर्म है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे स्टार्ट कैसे हुआ? व्हाट आर द अंडरपिनिंग्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी? ट्रेडिशनल एंड कंप्यूटर और आईसीटी लिटरेसी, बैकग्राउंड नॉलेज, सेंट्रल कॉम्पिटेंसीज, एटीट्यूड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रेडिशनल एंड कंप्यूटर और आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी। तो धीरे धीरे हम ओनली पावर पॉइंट करके पावर पॉइंट दिखा रहे थे, यही था। मगर अभी ऑनलाइन बहुत कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ये आप जो पावर पॉइंट प्रेजेंट करो उसका जरूरत नहीं है। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाइए, आप लेसन को लर्न कीजिए और वहां पर एग्जामिनेशन दीजिए, वो आपको फीडबैक देता रहेगा, रिमेडियल मेजर्स देता रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, what is an advantage of teaching media and digital literacy integrally? They cannot be separated from context, they are not relevant to other subjects, they are too complex for students to understand, they are not important skills for the future. देखिए, वो जो दोनों है, टीचिंग मीडिया एंड डिजिटल लिटरेसी, दे कैनॉट बी सेपरेटेड। टीचिंग मीडिया क्या है? जैसे कोई सब्जेक्ट कंटेंट आपको चाहिए, मैथ, साइंस, इंग्लिश, तो ओके। और डिजिटल लिटरेसी, टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी का हेल्प लोगे, चाहे आप डेस्कटॉप का हेल्प लो, टैबलेट का हेल्प लो, और मोबाइल में आप आपका लॉगिन पासवर्ड आप लॉगिन कीजिए, और उसमें टीचिंग मीडिया है, जो भी आप वो प्लेटफॉर्म को जाइए, और उसमें जो भी सब्जेक्ट के ऊपर जो लेसन है, और उसको आपका पीडीएफ मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। तो ये दोनों, दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। टीचिंग मीडिया एंड डिजिटल लिटरेसी, दे आर इंटीग्रेटेड अमंग ईच अदर, दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, what should educators understand when teaching a subject? Why they are teaching it, how to use digital devices, how to create digital information, how to evaluate information online. देखिए, जब what should educators understand when teaching it, जब एक टीचर वो सब्जेक्ट का कोई कंटेंट को टीच कर रहा है, तो व्हाट शुड एडुकेटर्स अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट ऑप्शन ए, व्हाई दे आर टीचिंग इट। वो उसको क्वेश्चन है, क्यों मैं इस कंसेप्ट को टीच कर रहा हूं, फॉर व्हाट रीजन, व्हाट इज द मेन पर्पज बिहाइंड दिस, फॉर व्हाट रीजन आई एम टीचिंग दिस कंसेप्ट टू द स्टूडेंट्स, व्हाई आई इन्वॉल्व माई सेल्फ इन दिस टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन टू टीच एक्चुअली दिस कंसेप्ट। सो व्हाई दे आर टीचिंग इट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मीडिया एंड डिजिटल लिटरेसी? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है मीडिया डिजिटल लिटरेसी का? मैथमेटिक्स, मैसेजेस, मोटिवेशन, मेमोरी। तो उसमें देखिए, आप जो मीडिया और जो डिजिटल लिटरेसी, ये दोनों में आप देखिए, आप कभी यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो कोई कंटेंट के ऊपर, आप बुक पढ़ रहे हो, बुक में आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है, आपको वो मोटिवेट नहीं कर रहा है। मगर जब आप कोई कंटेंट को यूट्यूब वीडियो देखा, उसका पार्ट 1 देखा, तो आपको वो मोटिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा का उसको पार्ट 2 देखना चाहिए। तो इस तरीके से जो मीडिया डिजिटल लिटरेसी है, वो हमको मोटिवेट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मीडिया एंड डिजिटल लिटरेसी इज मोटिवेशन। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम बुक में, कभी बुक रिफरेंस बुक है, कभी कभी हम वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, ओके, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो एनालाइज कैसे करेंगे, हमको इवेल्युएट कैसे करेंगे। मगर आजकल जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाएंगे, सो मच मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर इज देयर, पीडीएफ इज देयर, वर्चुअल ट्यूटर्स आर देयर, और जैसे यूट्यूब में टीचर्स वो पढ़ा रहे हैं, और वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ वो कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, आपका धीरे धीरे आप पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, फिर आप चाह रहे हो कि पूरा पार्ट में खत्म करूंगा, तो वो आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ए चैलेंज रिलेटेड टू डिजिटल लिटरेसी? लैक ऑफ इंटरजेनरेशनल कम्युनिकेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इक्वल एक्सेस टू डिजिटल एजुकेशन, कंटेंट ओवरलोड। इसमें देखिए क्या है, व्हाट इज ए चैलेंज रिलेटेड टू डिजिटल लिटरेसी? इट इज कंटेंट ओवरलोड। क्योंकि आप देखिए, दुनिया भर का अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और सो मेनी कंटेंट्स आर देयर। तो वो है, आप माने कंटेंट्स बहुत कुछ, बहुत प्लेटफॉर्म से आप देखेंगे, अभी बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म से, और सो मेनी कंटेंट्स आर देयर, ओवरलोड कंटेंट्स आर देयर। तो आप किसको बिलीव करोगे, किसको अप्रोप्रिएट बोलोगे, किसको इनअप्रोप्रिएट बोलोगे?
कौन आपको अच्छा लगेगा, कौन अच्छा नहीं लगेगा, तो ये कंफ्यूजन है। तो ये मेन जो चैलेंज है कंटेंट ओवरलोड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, what is an essential skill for digital literacy? Essential skill for digital literacy: physical strength, critical thinking, artistic talent, financial management। ये है डिजिटल लिटरेसी का जो एसेंशियल स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में जब आप लर्न कर रहे हो तो आपको वो ऐसे इट मीन्स लेसन प्रेजेंट करेगा और आपको क्वेश्चंस फ्रेम करेगा और आपको ऑब्जर्व करता रहेगा, आपको एनालाइज करता रहेगा। तो वो ऐसे डेवलप करता है एसेंशियल स्किल, वो जो क्रिटिकल थिंकिंग, ओके, जो बेसिकली एनालाइज आपका क्या किस एरिया में वीक है, वो फिर आपको गाइड सपोर्ट करेगा। तो आप खुद को एनालाइज कर सकते हो, आप खुद को इवेलुएट कर सकते हो, ठीक है। तो एसेंशियल स्किल फॉर डिजिटल लिटरेसी इज क्रिटिकल थिंकिंग। वही एनालाइज, एवेलुएट, ठीक है, सिंथेसिस, ये सब आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग मैटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ए डिजिटल नेटिव इज ए पर्सन हु हैज बीन एक्सपोज्ड टू टेक्नोलॉजी, आर्ट, ए और ऑन एंड इज कंफर्टेबल यूजिंग इट। देखिए, जो डिजिटल नेटिव में बताया था, डिजिटल नेटिव, सपोज आप टेक्नोलॉजी सराउंडिंग में आप ग्रो कर रहे हो, तो किस इट मीन्स इसमें होम, यंग एज, स्कूल, ओल्ड एज, किसमें आपको कंफर्टेबल है डिजिटल जो टेक्नोलॉजी के ऊपर आप नॉलेज एक्वायर करोगे, वो यंग एज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज द बेस्ट टाइम टू लर्न मोर एंड मोर। तो अच्छे से, मगर आप देखिए ओल्ड एज में आप इट इज डिफिकल्ट टू अडाप्ट एक्यूस्टम विद द टेक्नोलॉजी। तो बेस्ट है यंग एज में आप ये सब लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर 20 में, द ई इन द डील एक्रोनिमी स्टैंड्स फॉर। इसमें ई क्या है? देखिए, डी फॉर डिस्कवर है, ई फॉर एवेलुएट है, ए फॉर एक्ट है, एल फॉर लर्न है, ठीक है। तो ई फॉर यहां पर एवेलुएट, डी फॉर मैं बता दिया, इसको याद रखो, डी फॉर डिस्कवर, ई तो हो गया एवेलुएट, ए फॉर एक्ट और एल फॉर लर्निंग। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ये मैं ट्राई किया आज थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली के ऊपर, हाउ कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल एजुकेशन में ट्राई किया। उसमें भी शॉर्टकमिंग्स, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरा बहुत लिमिटेड नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है एआई के ऊपर और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड में। तो मैं ट्राई किया एक्चुअली, मैं ये जो इसको मैं अपलोड किया, तो इसमें मैं ट्राई किया कि कैसे आप थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा डिजिटल लिटरेसी के ऊपर, ठीक है। तो इसमें मैं ट्राई किया, यदि कुछ इफ यू डिटेक्ट एनी लैकुना और शॉर्टकमिंग्स, प्लीज फॉरगिव मी, डोंट कमेंट मी, ओके। तो मैं ट्राई किया उस एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। तो आप फिर वेट कीजिए डिजिटल लिटरेसी के ऊपर नेक्स्ट पार्ट। तो आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।